दो एंगल कैमरा होता है वो। Good afternoon, respected Managing Trustee, our CEO sir, and my dear friends. With highest respect and honor, let's welcome the amazing personality and our speaker, Mr. Punjab Singh. May I please have applause for him? We had the pleasure of listening to him in the past on the topics like ingredients of success and winning the people. Today, once again, we get the opportunity to hear him out on the very important topic, earning the new and retaining the old. Mr. Punjab Singh is from Punjab and was born in Patna. He is a young 75-year-old personality and still maintains #1 position in his field of insurance sector. Since last 37 years, he is a corporate member of LIC of India as a subject matter expert in training and motivating the young professionals in various topics. Mr. Punjab Singh has written 9 different books on various topics. Thousands of seminars are conducted by him among the insurance professionals and in different organizations all over India and overseas. LIC has recommended his name for Guinness Book of World Records from his achievements. Mr. Singh has given interviews on various national TV channels like CNBC, Awaaz, etc. Now may I please call upon our MS Sir, Dr. Sandeep Mittal, to please present the bouquet to Mr. Punjab Singh and to the honors. So all of you please sit back and listen to this lovely topic today and maybe gain a lot of things from it. Without taking much time, may I please call Mr. Punjab Singh and start the session right away. Sir. Thank you. गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो मैं आप सबके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। आदरणीय ऑल द मैनेजिंग directors, all the other dignitaries, those who are now authorized, कि आपने बार-बार हमें ये मौका दिया है। ये तीसरी बार मैं आपके पास आ रहा हूँ। कभी-कभी सोच में पड़ जाता हूँ कि ये सब्जेक्ट तो हमारा है नहीं, हमारा सब्जेक्ट तो इंश्योरेंस होता है, लेकिन उसके बावजूद भी आपका प्यार हमें खींच के ले आता है। एक चीज मन में बात आती है कि किसी भी इंडस्ट्री के लिए, वॉट एवर इट इज,
whether insurance industry, whether hospital industry, whether might be any other industry, who are responsible for our success or failure? The only people. People are the raw materials for us. Whatever we are getting, that is by virtue of the people. So our prime duty is to win the people, to maximize the people with me, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ रहें. तो ये जो टॉपिक है, दिस इज अ वेरी मच बर्निंग टॉपिक फॉर ऑल द इंस्टीट्यूशन, वट एवर द इंस्टीट्यूशन इज देयर, क्योंकि दे आर द रॉ मटेरियल्स. और किसी भी फैक्ट्री का जो प्रोडक्शन होता है ना सर, उसके रॉ मटेरियल पर डिपेंड करता है. तो जिनके पास जितना ज्यादा रॉ मटेरियल होगा, उनका प्रोडक्शन उतना ही तो ज्यादा होगा. तो अब ये सवाल उठता है कि हाउ वी कैन इनहेंस द नंबर ऑफ पीपल विथ अस, हाउ वी कैन इनहेंस. तो उसमें एक बात आती है कि हमें दो चीजों पे ध्यान देना होगा. Regular we have to earn the new people for us, and number two, what we will have to do, they should not leave us, they should come again and again with us. So that is called the retention of the people with us. How we can retain the people? Those who are going from here, if they are very much satisfied with us, the mouth publicity is the best publicity, I can tell you. No advertisement in comparison of the mouth publicity can be done. That is the best advertisement for any institution. When the people are saying about us, हम चाहें तो अपनी एडवर्टीजमेंट कहीं भी कर सकते हैं. बाय डीइंग ऑफ मनी, हम पैसे खर्च करके अपने को एडवर्टाइज कर सकते हैं. दैट इज ऑल्सो एसेंशियल पार्ट, वो भी है, वो भी जरूरी है. लेकिन हमारे विचार करते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री में अगर लोग हमारे बारे में पब्लिसिटी करते हैं ना, तो उस पब्लिसिटी से ऊपर कोई पब्लिसिटी नहीं होती है. ये बिल्कुल फैक्ट है. एंड नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई वन विल डू पब्लिसिटी फॉर मी? हमारे लिए क्यों करेगा? अनलेस अंटिल आई डोंट सेटिस्फाई देम, अनलेस अंटिल आई डोंट केयर फॉर देम, अनलेस अंटिल वी आर नॉट प्रोवाइडिंग द सर्विसेज टू देम. अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि व्हाट आर द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज. सो हमने कुछ सर्विसेज को डिफरेंशिएट किया है, वो हमारे प्रोफेशन में भी है. एंड आई थिंक ये करीब करीब हर प्रोफेशन में होगा कि हाउ वी कैन सेटिस्फाई आवर पीपल. तो हम एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है हमारी, वैसे ना कोई ऐसी हस्ती है, ना हमारी औकात है कि हम आपके सामने खड़े हों और हम बोले, ऐसा कुछ हमारे पास नहीं है. आई एम वेरी मच सिंपल इंश्योरेंस एजेंट, having the experience of 42 years in my field. So by grace of God, whatever I have achieved, I have written in books also. I have penned down the 9 books, my experience with my industry. कल भी हमारे प्रोग्राम थे तो करीब उसमें 300 लोग आए हुए थे, 300 people. और पिछले मैं समझ रहा हूँ कि 40 दिन हो गए हैं. शायद ही मैंने 40 दिन में 5 दिन गैप हुआ होगा, अदरवाइज डेली प्रोग्राम चल रहा है एवरी डे. हमारी इंडस्ट्री हमें यूज कर रही है, नो डाउट. आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि दे ट्रस्ट मी, दे बिलीव मी. उनकी सोच है कि हम उनके किसी काम में आ सकते हैं, और हमारे लिए बड़ी किस्मत की बात है कि अगर हमारी इंडस्ट्री ऐसा सोचती है कि हम उनके काम आ सकते हैं. और वो हमें एक जगह नहीं बल्कि पूरे देश में भेज रहे हैं. देश के कोने कोने में हमें भेजा जा रहा है. हमारे लाइफ पे फिल्म भी बनाई गई, कैसे रोल मॉडल पंजाब सिंह अपने प्रोफेशन के लिए. लेकिन ये डिफरेंट फील्ड में बात करना, आप लोग इतने लर्नेड, इतने क्वालिफाइड के बीच में, तो सर खड़े होने में हमारे पाँव कांप रहे हैं. मैं आपके सामने क्या बात करूंगा, मुझको कुछ समझ में नहीं आ रहा. जरा हमारा भी रुको बेटा, इसी से आपका खुद से ओके, ठीक है, समझ लीजिए. People are responsible for our success or failure for any industry. जिस इंडस्ट्री के पास लोगों की संख्या ज्यादा होगी, जिस चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, they are responsible for our failure and they are responsible for our success. दोनों चीज में हमारा जो रोल है ना,
वनरेबल पीपल के साथ है। चाहे हॉस्पिटल इंडस्ट्री है, इसमें भी हमें लोगों की जरूरत है। वी हैव टू अर्न मोर, तो वी हैव टू टेक केयर कि हाउ टू अर्न द न्यू पीपल एंड हाउ टू रिटेन द ओल्ड। इसमें क्या होगा, आज हमारे पास, मैं अपने फील्ड की बात बता दूं, क्या आई एम सर्विंग 17,000 पॉलिसीज बिकॉज आई नो हाउ टू अर्न द पीपल। और जो एक बार मेरे साथ जुड़ गया है, मैं ईश्वर को साक्षी रख के कहता हूं, उसने हमको छोड़ा नहीं, न उसने हमको छोड़ा, न हमने उसको छोड़ा है। दिस इज द सक्सेस कि दे पीपल आर सपोर्टर। तो हमने तो पहले कस्टमर को भी क्लासिफाई किया है कि अगर वो एक बार हमारा कस्टमर होता है, एक बार हमारे यहाँ आता है, तो ही इज अ कस्टमर ऑफ द हॉस्पिटल, नो डाउट। और अगर सेकेंड टाइम वो सेटिस्फाई होकर फिर हमारे पास आता है, तो उसके लिए एक वर्ड है मैनेजमेंट में, दैट इज कॉल्ड क्लाइंट। वो हमारे क्लाइंट को डेवलप करता है, बिकॉज ही इज कमिंग अगेन एंड अगेन टू मी। क्यों आएगा? हमने उनको सेटिस्फाई किया। और सेटिस्फाई करने के दो तरीके हैं हमारे समझ में। मैं जो भी कहूंगा, मैं सिर्फ मेरे अपने व्यक्तिगत विचार होंगे, माय पर्सनल व्यूज। उसके दो तरीके हैं, माय बेस्ट सर्विसेज एंड माय पर्सनल रिलेशंस। क्योंकि आज का जो एरा है ना, आज का एरा वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम जीरो डिफेक्ट सर्विस दे रहे हैं। जीरो डिफेक्ट सर्विस में भी द राइट ऑफ ए कंज्यूमर, उसका अधिकार है। हम उस पर एहसान नहीं करते। अगर हम उसका टाइमली सब कुछ उसको देख रहे हैं ना, तो वो एक अधिकार के साथ हमारे पास आया है। दे हैव गॉट द राइट टू डू, राइट टू गेट इट। उनके पास अधिकार है कि दे कैन गेट। बट अगर हम आगे बढ़ जाते हैं, जीरो डिफेक्ट का अधिकार है, ठीक है, लेकिन अगर हम कुछ आगे बढ़ जाते हैं तो हम वैल्यू एडिशन की तरफ चले जाते हैं। तो जो वैल्यू एडिशन इज नॉट द राइट ऑफ ए कंज्यूमर, वो कंज्यूमर का राइट नहीं है। जो वैल्यू एडिशन हुआ है, हम अगर कोई वैल्यू एडिट करते हैं तो वो कस्टमर के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। वो पर्सनल, हमें अपनी ग्रोथ के लिए हमें वो काम करना है। We have to add the values to our services. If we are adding the values to our services, definitely we can retain. हम उसको रोक सकते हैं। तो we have to innovate the ideas. आपको अपनी इंडस्ट्री में अपने हिसाब से उन आइडियाज को डेवलप करना है कि what value addition can be given to our consumer, what value addition we can give to our people, those who are coming to me, they rely upon me, that's why they have come. हमारे पास क्यों आए? उनका भरोसा है। और एक अधिकार के साथ आए हैं, तो अपनी सर्विसेज का अधिकार को ले सकते हैं। They can get the right of the services. But अगर हम कुछ आगे बढ़ के उनके लिए कुछ करते हैं जो उनके राइट के बियॉन्ड है, बियॉन्ड द राइट, तो दैट इज द बेस्ट वे टू रिटेन द कस्टमर विद अस। दैट इज द वे। तो अर्निंग द न्यू एंड रिटेनिंग द ओल्ड एक माध्यम है, ये पब्लिसिटी, दैट इज ऑल्सो मीडिया टू ब्रिंग द न्यू पीपल, नो डाउट। मैं अभी एक एग्जांपल दे रहा हूं। हमारे पटना में एक सर बहुत अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट है, डॉक्टर प्रभात। शायद आप में से अगर कोई जानते होंगे, आई डोंट नो whether he was the best cardiologist of the Bihar, I can tell you. Am I right, sir? Best cardiologist of the Bihar, Dr. Prabhat, जिनके नाम से हॉस्पिटल में रश होता था, रश। और वो जितने अच्छे डॉक्टर माने जाते थे ना सर, उससे कई गुना ज्यादा ह्यूमन बीइंग माने जाते थे। ये उनकी पर्सनालिटी थी कि जहां वो जाते थे भीड़ लग जाती थी। उनकी डिग्री के, उनके नॉलेज के, maybe some more doctors, there were more doctors in Bihar, but the quality what he was having, that was quite different from the others. That's why the hospital was getting the rush only due to one person, and there was one man show, Dr. Prabhat, one man show in our Patna. Unfortunately, he died of COVID. He died. उनको बचाया नहीं जा सकता। He was only 52 years of age, and he died. He has a dream project. I was very much close to him. He used to say me, sir, Punjab sir. I was very much close to him. चाहे कितना भी रश हो, कुछ भी हो, उनको पता चलता था कि पंजाब सर आए हैं ना, तो सबसे पहले हमसे बात करते
क्या क्यों आए, कैसे आए। तो उनका पर्सनल हमारे साथ कुछ बिहेवियर, कुछ रिलेशन अच्छे रहे होंगे, हमारे भी कुछ ऐसे होंगे। ये तो वन साइड गेम होता नहीं, दैट इज द टू वे गेम। तो उनकी डेथ के बाद उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था कि हम एक खुद का हॉस्पिटल बनाएंगे। तो दूसरे के यहाँ काम कर रहे थे, पहले हार्ट हॉस्पिटल में थे डॉक्टर A.K. ठाकुर के, उसके बाद वो मगध में आ गए। जब मगध में आए तो उसके बाद उन्होंने एक बड़ा सा एक जगह ले ली कि हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि मैं अपना हॉस्पिटल खोलूंगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब उनकी डेथ हो गई तो उसके बाद एक दिन हमने पेपर में देखा, I was surprised to see full pace as a treatment. डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल ओपनिंग ऑन 3rd of November. सरप्राइजिंग, उसमें पटने में डेंगू बहुत जोर था सर, एकदम क्लाइमैक्स में था डेंगू, और पेपर में निकाला था कि 15 days फ्री सर्विसेज फॉर द डेंगू पेशेंट्स। दैट वाज द ब्यूटीफुल आइडिया फॉर द एडवर्टीजमेंट। और 3 नवंबर को फर्स्ट डे उनके हॉस्पिटल में रश हो गया। एक तो उनके नाम का प्रभाव था, दैट वाज द इफेक्ट डॉक्टर प्रभात। दूसरा जो उन्होंने डेंगू के लिए 2 OPD चलाए, 2 OPD फ्री ऑफ कॉस्ट, नॉट एनी कॉस्ट, ओपनिंग की उसी से, फ्री से। और उसका इंपैक्ट ऐसा पड़ा कि पूरे पटने में अभी 1 महीना 1.5 महीना भी नहीं हुआ है एंड द हॉस्पिटल इज गेटिंग द रश। अब IPD OPD सब चलने लगे। मल्टी स्पेशलिटी उन्होंने खोला है, नॉट ओनली कार्डियोलॉजी। अब उसमें रश आ गई। तो हमें देख एक बात, हमारे मन में एक बात आई कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द पब्लिसिटी, व्हाट वाज द बेस्ट वे, व्हाट वाज द गुड वे, वेदर वाज इज नॉट अ गुड वे टू एडवर्टाइज देमसेल्फ। एट द डे ऑफ द ओपनिंग दे आर प्रोवाइडिंग द फ्री सर्विसेज टू द सोसाइटी and the society started to loving them. Society started to loving them. Society started to love the hospital. तो I got a good idea कि पब्लिसिटी की जरूरत तो किसी भी जगह है, वो हमें जब तक हम अपने को बताएंगे नहीं। उसके बाद हमने देखा कि पेपर के हर न्यूज़पेपर में अंदर में बहुत ब्यूटीफुल कलर, हर जगह के पेपर में उनकी ऐड आ रही है, डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल। तो आज 1.5-2 महीना होते होते उस हॉस्पिटल में एक अच्छी पोजीशन बन गई उस हॉस्पिटल की। अब डिपेंड कर रहा है कि अर्निंग द न्यू, उन्होंने एक अच्छा आइडिया तो ले लिया, नो डाउट। दैट वाज वन ऑफ द गुड वे टू अर्न द पीपल विद देम, टू कॉलिंग द पीपल फॉर देम। लोग आना शुरू हो गए। लेकिन मेजर पार्ट क्या है? मेजर पार्ट होगी हमारी बेस्ट सर्विसेज टू रिटेन विद देम। हम एक पेशेंट को, एक पेशेंट हमारे लिए एक हमारा कस्टमर है सर, है ना? डू यू एग्री? हमारे पास आया तो हमारा कस्टमर बन के आया, आई सेटिस्फाई हिम। उसने दूसरी बार, उसको जब भी जरूरत पड़ी तो फिर हमारे यहाँ आ गया, क्योंकि उसके मन में ट्रस्ट था कि हमारी अच्छी सर्विसेज वहां मिली है, मैं ठीक होकर के आया हूँ। और वो जब यहाँ आ गया तो he is my client because he is coming again and again। और हमारे तीसरी स्टेज जो होती है ना हमारे मैनेजमेंट में, जो एक कस्टमर की, वो होती है सपोर्टर। उसने हमको सपोर्ट करना शुरू किया। उसके एरिया में कोई भी बीमार पड़ रहा है तो ही इज टेलिंग, अरे आपकी तबीयत गड़बड़ है, यू गो टू शांति मुकुंद। आपका ये ट्रीटमेंट है, यू गो टू शांति मुकुंद। द अदर when the other are telling about you, other are telling about you and they are recommending the hospital, that is the best quality of the hospital, कि hospital is getting the supporters। उस समय हम उसको कहते हैं सपोर्टर, he is supporter of the hospital। The supporter is the best quality of a consumer। But अब जो era है ना, now जो era, it has changed। इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर क्या है? अब सपोर्टर के ऊपर क्या होगा? सपोर्टर के ऊपर भी है। हमारे सपोर्टर ने किसी से कहा कि शांति मुकुंद में जाओ, यू विल गेट द गुड ट्रीटमेंट। वहां कोई दूसरा बैठा हुआ है, उसने कहा शांति मुकुंद तो बिल्कुल बेकार है, क्यों वहां जा रहे हो? एक ने अपोज कर दिया। और ये हमारा सपोर्टर
इन ए सेंस ऑफ मी, हम वहां कोई नहीं है, लेकिन ये वहां पे फाइट कर जाता है कि तुम कौन हो तो ये बोलने वाले कि शांति मुकुंद बेकार है। मैं पर्सनल जानता हूं कि शांति मुकुंद इज द बेस्ट वन। आप वहीं जाइए, आप वहीं जाइए। वो इस लेवल का फाइटर होना चाहिए हमारे लिए। अगर हम वैसे फाइटर पैदा कर सके अपने लिए, तो उसको क्या कहते हैं? व्हाट इज द स्टेट ऑफ दैट? दैट इज एडवोकेट हु इज फाइटिंग इन माय एब्सेंस। जज के सामने हमारे बिहाफ में कौन खड़ा होता है सर? हमारा एडवोकेट। हमारा नहीं है, लेकिन हमारे तरफ से फाइट कौन करता है? हमारा एडवोकेट। और जिस दिन हमारा कंज्यूमर, जिस दिन हमारा पेशेंट हमारे लिए सोसाइटी में एक एडवोकेट के रूप में पैदा हो गया, तो उस दिन हॉस्पिटल में आपको रश संभालने में दिक्कत हो जाएगी। मैं आपको ये विश्वास दिला रहा हूं, आप उतना रश नहीं कंट्रोल कर पाएंगे कि अगर आपने सपोर्टर और सपोर्टर के ऊपर भी एडवोकेट पैदा कर लिया तो। दैट इज द मीनिंग, दैट इज द मीन ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, दैट इज द मीन ऑफ ए पर्सन। अगर कोई अपना पर्सन काम करता है। अब देखा जाता है कि कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें इंडस्ट्री इज हैविंग द मोर एंड मोर सपोर्टर्स एंड एडवोकेट्स, more and more supporters and advocates for me, those who are doing advocacy for me, not only supporting, advocacy for me. So what we have to do to produce the more supporters and more advocates for me, that I want to tell you. That is the need of the time. Am I right, sir? That is the need of the time. I have to produce more and more advocates for me. How the great word is advocate is fighting in my absence. He is fighting for me. So we have to produce. So for that, I know about my industry very well, no doubt. Because I am having the experience of 42 years with my industry. But I don't have the experience with your industry. But despite that, I have selected few ideas. Might be you will like it, might be you will ignore it. But what the ideas I have decided, what I have seen, I have observed, जो हमें अच्छा लगा, जो हमें कुछ ऐसे आइडिया अच्छा लगे कि अगर हम ये हॉस्पिटल इंडस्ट्री में भी ये काम करेंगे, इस तरह से करेंगे, तो we can produce more and more supporters and advocates for us. So I would like to share my those ideas. Am I right? Thank you very much. Through local channel, this is the print media, दोनों ने किया print media, local channel, हमारे local channel में भी advertisement बहुत आती है। सर वो कैसे आती है कि लोकल चैनल है ना, वो इनवाइट करते हैं डॉक्टर्स को, डॉक्टर खुद वहाँ पे जाते हैं, किसी भी जाए, और वो कहते हैं क्वेश्चन आंसर्स। अब जैसे डायबिटीज, अब डायबिटीज पे जो डॉक्टर आते हैं उनकी ऐड आ जाती है कि आज सारा दिन 12 बजे से 2 बजे तक 2 घंटे के लिए हमारे डॉक्टर अवेलेबल होंगे, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग डायबिटीज। तो उनका जो स्पेशलाइजेशन हॉस्पिटल जिस चीज में समझता है ना कि हमारा ये डिपार्टमेंट हमारा वैल्यूएबल है, ये डिपार्टमेंट हमारा एक्सेप्टेबल है, हो सकता है तो आपके सारे हो, बट जो आपने जिस दिन सेलेक्ट कर लिया और उस डॉक्टर को लोकल चैनल पर अगर आपने प्रोवाइड कर दिया, एंड पीपल आर आस्किंग द क्वेश्चन, पीपल आर वांटिंग द सॉल्यूशन, दे आर डिस्कसिंग अबाउट देयर प्रॉब्लम्स, तो डेफिनेटली द नेम ऑफ द डॉक्टर एंड द नेम ऑफ द हॉस्पिटल विल गो अप. That is also one of the way to bring the new people to my institution. Am I right, sir? That is also that may be also one of the way to bring the new people to our hospital. Local channel advertisement, print media advertisement, because in newspaper so many times we are getting dermatologist. अब dermatologist आ रहे हैं hospital के नाम के साथ, and people are asking a question and they are giving the answer, and they are telling. They are saying whether if you need, you come to the hospital. You come to my OPD. So definitely if someone is if he is going to meet him, he will go to the hospital. The hospital is getting the advertisement and hospital is attracting the new people. So to attract the new people via print media, via local channels, that is also important part. That can be done. इसमें कोई संदेह नहीं है। हम क्या हैं
कि जब तक हम दूसरे को बताएंगे नहीं, कोई हमारे बारे में जानेंगे कैसे? हमें तो अपनी एबिलिटी को बताना होगा ना, कि हमारे अंदर स्पेशलाइजेशन क्या है, हमारी एबिलिटी क्या है, हमारी फोर्स क्या है, हमारे अंदर किस तरह के लोग हैं, कितने लर्नेड हैं, कितने क्वालिफाइड हमने रखे हुए हैं। तो जब तक हम ये सोसाइटी को बताएंगे नहीं, तब तक सोसाइटी हमारे पास हमसे जुड़ेगी कैसे? तो पब्लिसिटी इज द वन ऑफ द आइडिया टू ब्रिंग द न्यू पीपल विद अस। और पब्लिसिटी में तो मैंने जैसे कहा कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है माउथ पब्लिसिटी, वो आगे बाद में बात। ओके, फर्स्ट इंप्रेशन, इफ समवन इज कमिंग टू द हॉस्पिटल, सर, this is only my view, sir, with folded hand I am telling you, this is not the thumb rule, this is not the hard and fast. I might be wrong, you may be different, no problem, but what I think that I have given, if someone is coming, देखो लोग कहते हैं first impression is the last impression. Do you agree? I don't agree. Why the first impression should be my last impression? I have changed in my book. I have changed the phrase first impression is the last impression. I have written in my book, first impression is not the last impression, it is everlasting impression. सदा बना रहने वाला इंप्रेशन है, अंतिम क्यों है? लास्ट इज अ नेगेटिव वर्ड एंड वी अवॉइड द नेगेटिव वर्ड्स. वी डोंट लव द नेगेटिव वर्ड्स. We don't love the negative attitude. We are positive. We love the positive words. And last word is negative word. This is not positive. But if I used to say, first impression is not the last one. It is everlasting. What does it mean? सदा बने रहने वाला. हमारी पहली छवि अंतिम छवि नहीं है, ये किसी की आंखों में सदा बने रहने वाली छवि है. हम ये बोल करके पॉजिटिव हो सकते हैं, लेकिन अंतिम बोल करके हम हमेशा नेगेटिव मिलाते हैं. तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ द वर्ड्स. तो हमने ये कहा है कि फर्स्ट इंप्रेशन ये जो है ना, कोई आता है किसी हॉस्पिटल में जाता है, मैं जाता हूं ऐसे हॉस्पिटल, सपोज दैट आई एम ए पेशेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट ए पेशेंट, what I want with the hospital. My first impression starts whether I am getting the parking facility for my car or not. This is very small thing. But always remember, the small things makes big difference. Small things make big difference. The only big things are not making the big difference. The small things are making the more big difference. बहुत छोटी चीज है, लेकिन मैं एक हॉस्पिटल में जाता हूँ, I am not getting the parking facility. हमें प्रॉब्लम होती है, मैं गाड़ी कहीं खड़ा करता हूँ, मेरा ध्यान उस पर लगा रहता है, तो पार्किंग फैसिलिटी की एक छोटी सी कमी हमें कहती है, छोड़ो यार ये वहाँ बड़ा दिक्कत होती है, चलो कहीं दूसरी जगह चलते हैं. तो एक छोटी सी चीज ने हमें एक जगह से अलग कर दिया. और अगर मैं चाहता भी हूं, ठीक है मैं जाता हूं, मैं उसको बियर कर लेता हूं, लेकिन क्या आई एम सेटिस्फाइड? नॉट एट ऑल. मजबूरी मुझको लेके जा रही है, आई एम गोइंग देयर, बट इंटरनली आई कैन से कि आई एम नॉट फुली सेटिस्फाइड विद द अरेंजमेंट. और अगर मैं आता हूं और हॉस्पिटल कहता है कि आप सर आप गाड़ी सुधर के जाइए, हम लोग को आप अपनी चाबी दीजिए, अब यू गो. So many hotels are there, so many hospitals are there, whether we are having the मतलब कोई क्या बोलते हैं उसको कूपन पार्किंग, हाँ, वैलेट पार्किंग. तो definitely we must arrange, definitely we must provide our consumer to that facility also. That is the very much beginning of the first impression what I am getting from the hospital. That is the first impression, and first impression, my first impression starts from the beginning. What facility I am getting? So my parking, well receiving, whether is there any person to receive me? क्या हमने गेट पर जो आदमी रखा है उसने कहा कि वेलकम सर आइए? अगर मैं इमरजेंसी में जाता हूँ तो मेरे एक्सपेक्टेशन क्या, मैं इमरजेंसी में जाकर के और मैं बेड पर लेटा रहा हूँ, डॉक्टर का इंतजार करूँ? इमरजेंसी में मेरे एक्सपेक्टेशन होते हैं
one doctor should wait for me. जैसे ही हमारा स्टे चलाता है, हमारा बेड आता है, डॉक्टर इस देयर। गेट के बाहर जैसे इमरजेंसी के गेट पे ही करता हूँ ना, I must get the facility to attend me. I must get the facility. क्योंकि हमारा वेट करना वहां पे मुश्किल है, और अगर मैं वेट करता हूँ ना तो फर्स्ट इंप्रेशन हमारा खत्म होता है। और मैं किसी से कहता हूँ कि इमरजेंसी में गया तो वहां मुझको 10 मिनट के बाद डॉक्टर ने देखा। नो, वी हैव टू टेक केयर। इफ यू वांट टू प्रोवाइड द गुड सर्विसेज, वी हैव टू टेक केयर। वो एक भरोसे के साथ आया है। जब हम मेडिकल साइंस कहते हैं कि ईच एंड एवरी मिनट इज प्रेसियस फॉर ए पेशेंट, है राइट सर? एक एक मिनट प्रेसियस है किसी पेशेंट के लिए, और अगर हम हमारे डॉक्टर 5 मिनट के बाद उसको देखने जाएंगे तो उस 5 मिनट की कीमत क्या होगी? हो सकता है जो हम इंजेक्शन लेके बचा सकते थे, हम उसको पंप कर रहे हैं। उस 5 मिनट की कीमत तो पंप में भी ज्यादा हो सकती है। Am I right or not? हाँ, हो सकती है। तो वो 5 मिनट कितने प्रेसियस है। और अगर वो डॉक्टर हमें वहां दरवाजे पे मिलते हैं और इमीडिएट हमें अंदर लेके जाते हैं, तुरंत ले जाकर हमारा ट्रीटमेंट करते हैं, इंजेक्शन देते हैं, हमारे ड्रिप लग जाते हैं। अनफॉर्चुनेट कुछ होता भी है ना, एज अटेंडेंट कहता है बाहर आके, डॉक्टर ने बड़ी कोशिश की थी, आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद द डॉक्टर। अनफॉर्चुनेटली ही कुड नॉट से बैड लक, बट डॉक्टर वाज वेरी नाइस। Doctor is getting the reputation, hospital is getting the reputation despite death of the patient. Okay, attendant को क्या चाहिए? What attendant need? My patient was taken in care. उसको सबसे अच्छी सेवाएं दी गई, उसका ट्रीटमेंट किया गया। अनफॉर्चुनेट बात था वो नहीं बचा, लेकिन हॉस्पिटल ने पूरी मदद की, हॉस्पिटल ने पूरी कोशिश की, हॉस्पिटल ने ये प्रयास किया, वो प्रयास किया, और बाहर आकर के डेफिनेटली वो दूसरे लोगों से ये नहीं कहेगा कि उस हॉस्पिटल में डेथ हो गई, वो बोलेगा डेथ तो होनी थी, लेकिन जो एफर्ट किए गए उस हॉस्पिटल के द्वारा, दैट वाज वंडरफुल एंड मिरेकल वाज देयर, बट अनफॉर्चुनेट पार्ट वाज सर्वाइव। He couldn't survive, but we have to gain our impression. Whatever the result is here, we have to make our effort to get the best impression from the market. And market always, as a patient, every patient wants, if the moment I enter the hospital, someone should be there to attend me, and someone should be there to start my treatment. Am I right, sir? This is the fact, and we have to take care of that. हमें उधर भी देखना होगा. Okay. Quick response, especially in emergency, cordial atmosphere. Whether we are providing the cordial atmosphere. अगर पेशेंट ने कुछ कर दिया और हमने उसके साथ कुछ झगड़ा कर बोल दिया, हमने कुछ रिएक्टरी लैंग्वेज यूज कर दी, हमारे शब्दों में रिएक्शन था, उसने कहा कि हमारा इलाज ठीक, आपको क्या लगता है कि आपका इलाज ठीक नहीं हो रहा है? Is it the way of talking with the patient? अगर कोई हमारा आदमी ऐसा बोलता है तो we have to take care of that. We have to teach him. No, there should be cordial atmosphere. Sir, we are doing our best. Sir, we are providing our best. आप बिल्कुल ठीक है, don't worry, बिल्कुल ठीक है। तो पेशेंट की तो आधी बीमारी कम हो जाती है जब उसको अटेंडेंट उस तरह से, जब अटेंडेंट को भी सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि यहाँ तो जो मिले उन्होंने कितने अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स किया। हम डेस्टिनी को चेंज नहीं कर सकते, हम उसके फेट को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने बिहेवियर को चेंज करके उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। और हमारा बिहेवियर कहता है कि वी मस्ट प्रोवाइड द कॉर्डियल एटमॉस्फेयर। In any case, never we have to use the rough language. In any case, we have to take care. और हमेशा पे कि put yourself there, then think what he wants. अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं क्या चाहता, ऑलवेज थिंक अबाउट दैट, कि अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं क्या चाहता, प्रोवाइड लाइक दैट, व्हाट यू वांट, यू गिव देम।
जो आप चाहते हैं आप उनको दीजिए, लेकिन सबसे पहले पुट योर सेल्फ इन दैट चेयर, पुट योर सेल्फ इन दैट बेड, पुट योर सेल्फ इन दैट स्टेचर कि अगर मैं वहां हूं तो मुझको क्या चाहिए, जो मुझको चाहिए आप उनको प्रोवाइड कीजिए, दैट्स ऑल। जो आपको अच्छा लगता है आप वो चीजें उनको दीजिए, दैट इज द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। डेफिनेटली दे विल बी सेटिस्फाइड कि मैं वहां होता तो मुझको क्या चाहिए था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर जगह हर फील्ड में एक सेंटेंस जो है ना बहुत पावरफुल है, अगर मैं वहां पे होता तो मुझको क्या चाहिए था, मैं उसको वही देने की कोशिश करूं जो मैं चाहता था। कोई कंप्लेन नहीं होने वाली, सारे एरर मिट जाएंगे, सारे कंप्लेन्स मिट जाएंगे अगर हमारे लोग ये सोच लेंगे ना, अगर जिस दिन हम ये सोच लेंगे कि इंडस्ट्री हमारी माँ है, दिस शांति मुकुंद इज माई मदर, शांति मुकुंद इज फीडिंग अस, शांति मुकुंद के पैसे हमारे घर में जाते हैं हमारे बच्चों के लिए, हमें इसकी ग्रोथ चाहिए, हमें इसके लिए सोचना है। ऑल द टाइम वी हैव टू थिंक फॉर माई इंडस्ट्री, ऑल द टाइम वी हैव टू थिंक फॉर हॉस्पिटल। और हमें कभी वो काम नहीं करना है जब हम किसी को डिससेटिस्फाई करें, तो हम सेटिस्फाई कैसे करेंगे? अगर उस जगह पे मैं होता तो मैं क्या चाहता हम अपने पेशेंट को देंगे, दैट विल बी द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, एंड दैट विल बी आई थिंक बेस्ट लेवल ऑफ द सेटिस्फैक्शन व्हाट आई वांट इफ आई गिव। जो हम चाहते हैं हम वो देने लगेंगे ना तो कभी कंप्लेन नहीं आने वाली, और हर पेशेंट भी ये चाहता है, सेटिस्फैक्शन, कॉर्डियल एटमॉस्फेयर, गुड बिहेवियर, अच्छी भाषा। पेशेंट को नॉलेज नहीं है, मेडिकल का नॉलेज पेशेंट को भी नहीं है और उसके अटेंडेंट को भी नहीं है, वो आपको है। वो गलत क्वेश्चन कर सकता है, he can ask the wrong questions, he can ask the irritating questions, उसके क्वेश्चंस इरिटेटिंग हो सकते हैं आपके लिए, ये क्या पूछ रहा है, but despite that we have to maintain the cordial atmosphere because he's not having the knowledge. That medical knowledge is my subject, not of the patient, not of the attendant. They may be wrong, but I should have to prove myself that I am never wrong. वो गलत हो सकते हैं, लेकिन हम उनकी गलतियों का जवाब गलतियों से नहीं दे सकते, हम उनके गलत सवालों का जवाब गलत बोल के नहीं दे सकते, हम उन पे इरिटेट नहीं हो सकते। We don't have the right to do so. We don't have the right to do so. हमारा अधिकार नहीं है हमारे पास कि एक जो कष्ट में आया है, बीमारी में आया, अटेंडेंट रो रहा है, अटेंडेंट परेशान है, पेशेंट का क्या होगा वो सोच रहा है, और हम हमारी लैंग्वेज उसको इरिटेट करते हैं। Whether he will come again to me, whether he will recommend me to others, no. So my first appearance, cordial atmosphere, well cooperation, well cooperation. These are the factors to retain the customer, to retain the patient with us. Okay. क्वालिटी सर्विसेज, इसको भी मैंने 4 पार्ट में दिया है। क्वालिटी सर्विसेज, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द सर्विसेज, हाउ वी कैन प्रोवाइड द क्वालिटी सर्विसेज। मैनेजमेंट की लैंग्वेज में देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सर्विसेज। नंबर 1, दैट इज जीरो डिफेक्ट, देयर इज नो डिफेक्ट इन माय सर्विसेज। हमारी सर्विस में कोई डिफेक्ट नहीं है, देयर इज नो डिफेक्ट। But now the era has changed. We are running, never forget that we are running in a competitive market. A consumer is having a lot of options to go somewhere. We are not the alone and we don't have the monopolistic. We are not the monopolistic. हमारे पास किसी चीज की मोनोपोली नहीं है। कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो सिर्फ हम प्रोवाइड कर रहे हैं और दूसरे हॉस्पिटल नहीं कर रहे हैं। नो, देयर इज कॉम्पिटिटिव मार्केट
And in the era of the competitive market, we have to provide the quality services. तो quality services कहती है कि consumer now the era is not only the zero defect. Zero defect उसका अधिकार है. आपने इलाज किया, ठीक है, उसका अधिकार है. आपने प्रोवाइड किया, उसका अधिकार है. अब कंज्यूमर चाहता है कि where is the value addition in services? हमें इन्होंने वैल्यू एडिशन क्या दिया है? और वैल्यू एडिशन क्या है? आपको अपने इंडस्ट्री में यू विल हैव टू डेवलप द आइडिया व्हाट वैल्यू एडिशन वी कैन ऐड. व्हाट वैल्यू एडिशन वी कैन ऐड. अगर हम सिवियर में पेशेंट के पास एक बट भेज देते हैं, रोज बट विश्व स्पीडी रिकवरी, क्या जाता है 10 रुपए में. और हर बेड पर अगर हमारी ये गुलाब की कली चली जाती है एक छोटे से नोट के साथ, वी लव यू, एक छोटी सी चीज 10 रुपए, एक 10 रुपए की गुलाब की कली, और हम वार्ड में आईपीडी में भेज देते हैं. हर बेड के पास वो चली जाती है. वी लव यू, वी केयर यू, वी केयर यू, यू आर प्रेशियस फॉर मी, योर लाइफ इज प्रेशियस फॉर मी, वी आर टेकिंग केयर ऑफ यू, विश यू वेरी स्पीडी रिकवरी, गॉड ब्लेस यू. ये छोटे छोटे शब्द, एक 10 रुपए की गुलाब की कली. आप क्या सोचते हैं अगर कोई हॉस्पिटल नहीं करता और एक ने स्टार्ट कर दिया, तो इज इट नॉट द वैल्यू एडिशन फॉर ए पेशेंट? और क्या लगा सर उसमें? इम्पैक्ट इज ग्रेट. तो वी हैव टू पुट द ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द माइंड ऑफ ए पेशेंट. Mind of a patient. We can do it. We should do it. ये मैं as a patient मांग रहा हूँ. This is not my right. This is not my right, and it never comes in the zero defect services. ये zero defect service में नहीं है. Zero defect हमारा अधिकार है ना. गुलाब की कली हमारा अधिकार नहीं है. Is it the right for me? No. But if any hospital is providing me a rosebud writing that I love you, we love you, we care you, you are precious, your life is precious, don't worry, we are with you. ये छोटे छोटे सेंटेंस, छोटे छोटे शब्द जब एक गुलाब की कली के साथ उसके पास जाएंगे ना, तो उसके अटेंडेंट को कैसा लगेगा. और एक 10 रुपए की चीज आपको मार्केट में याद पैदा कर देगी. और लोग एग्जाम्पल देंगे कि शांति मुकुंद इस तरह का प्रोवाइड करता है, और आप दूसरे से आपका लेवल ऊपर आ जाए. कंपटीटिव मार्केट में आपकी जगह एक रैंक ऊपर चली जाएगी. डू यू एग्री? मैं नहीं कहता कि एग्री करो, लेकिन डू यू लाइक इट? क्या ये सजेशन आपको ठीक लगता है? हाँ? हम लोग इसको फॉलो कर सकते हैं? फॉलो कर सकते हैं? Then why not big hand for me? होना चाहिए ना. एक 10 रुपए में हमने अपने कंपटीटर को डाउन कर दिया by providing the value added services. We can think the more ideas. What more ideas we can give to our patients at low cost, without cost. विदाउट कॉस्ट. कौन से ऐसे आइडिया हम हॉस्पिटल में डेवलप कर सकते हैं विदाउट कॉस्ट, जो कि उसको अच्छे लगने लगे और उसको सेटिस्फैक्शन हो कि मैं जिस जगह पे आया हूँ वो बहुत ही अच्छी जगह है, लोग बहुत अच्छे हैं. ये हमको अपने इंडस्ट्री के बारे में, मैं तो इंश्योरेंस के बारे में जानता हूँ. आई नो, दैट्स व्हाई आई एम मेंटेनिंग नंबर 1 पोजीशन फॉर द लास्ट 38 years in my state. Nobody could touch me. हमारे बिहार में कोई हमको छू नहीं पाया. 38 सालों में हमने नंबर 1 की जगह रखी. और आज भी एट द एज ऑफ 75 आई एम मेंटेनिंग माय नंबर 1. एक बार नंबर 1 कहीं पर बन जाना, दैट मे बी बाय चांस. 2 बार नंबर 1 बनना, अगेन दैट मे बी बाय चांस. लेकिन 38 सालों से नंबर 1 बने रहना, दैट इज नेवर बाय चांस. दैट इज बाय चॉइस. दैट इज बाय चॉइस. आखिर उसमें क्या क्वालिटी है कि वो नंबर 1 को मेंटेन कर रहा है? तो आपको
अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में, अपनी इंडस्ट्री में आप इसमें इनोवेटिव होइए, इनोवेट कीजिए कि कौन छोटे छोटे आइडियाज हैं, कभी सोचिए और सोचते हुए बात दिमाग में आ जाए ना तो खट से कागज पर लिख डालिए कि मैं इसको इम्प्लीमेंट कर सकता हूं, इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड। ये हमें भीड़ से अलग करेगा। हर आदमी एक जैसा करता है। अब मैं आपको सवेर का मैं नाम भी लेना नहीं चाहता, लेकिन आई डिड नॉट गेट ए गुड एक्सपीरियंस। मैं अभी सवेर में गया एक जगह अपने बच्चे को दिखाने के लिए, तो हमने देखा कि दे आर हैविंग द ओनली वन केबिन टू चेक द बीपी एंड वेट, एंड देयर वाज अ लॉन्ग क्यू। पीपल हैव टू वेट फॉर द ब्लड प्रेशर चेकिंग, and all the OPD departments, they are having the only one BP check. I did not like. Frankly, I tell you, I did not like. Hospital is having the rush. There are so many OPDs. There are so many doctors. But why only one BP instrument to check the patient? Am I here to wait? हमारा तो बीपी उसी समय बढ़ जाएगा जब हमको इंतजार करना पड़ेगा, तो मैं चेक क्या कराऊंगा? वो तो बीपी बढ़ाने की जगह है। हमने तो सोचा कि कभी मुझको मौका लगा तो मैं कहूंगा whether you are checking the BP or you are raising the BP। तो एक मैं क्या इंप्रेशन लेके आया, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, मैं क्या इंप्रेशन लेके आया सर? Was it a good impression? मैं अभी 1 घंटे पहले की बात बताऊं। तो why not we should provide the more hour checking points to reduce the crowd? अगर एक बीपी इंस्ट्रूमेंट है तो हम 2 कर सकते हैं, लेकिन पेशेंट के मन में, अटेंडेंट के मन में, पेशेंट के मन में यह बात क्यों गई कि हमें यहां इंतजार करना पड़ा, और ये पेशेंट एंड अटेंडेंट हमको नहीं अच्छा लगा, तो हाउ वी कैन थिंक कि दूसरों को अच्छा लगेगा? तो छोटी छोटी बातें जो हम अपनी इंडस्ट्री में जब चलते हैं ना, तो हमें चेक पॉइंट होनी चाहिए। हम खुद से चेक करें कि इस एरिया में हमको किस चीज की जरूरत है, कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे हॉस्पिटल को लोग याद रखें। वी हैव टू इनोवेट, एंड नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। ये जरूरत है। आविष्कार कब होते हैं? हमें जरूरत होती है। तो एज ए पेशेंट जो हमारे मन में बात आती है, वो हम आपसे बात कर रहे हैं कि हमको कौन चीज अच्छी लगी, कौन चीज नहीं अच्छी लगी। मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं, मैं नहीं जानता कि मेरे लिए स्पेशल केयर था, लेकिन मैं 8 दिन रहा हूं शांति मोहन में। सर, मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता कि वो 8 दिन मेरे कितने कॉर्डियल यहाँ पे बीते हैं। क्या नीटनेस, क्या मैंने थोड़ी देर के बाद डॉक्टर का आना, कैसे हैं, एक सेंटेंस छोटा सा, कैसे है, लगता था कितनी इंटरनल पूछते कि मेरे को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो लोग हैं। कई जगह से हैं कि जहां लोग पीछे दौड़ते हैं कि जहां डॉक्टर को बुला दीजिए, और कई जगह ऐसी है कि उन्होंने ऐसा टाइम रखा है कि थोड़े देर पे कोई ना कोई आके पूछ के चला जाता है। इवन एक नर्सिंग स्टाफ पूछ के चली जाती है, सर एनी प्रॉब्लम, सर एनी प्रॉब्लम। बस एक सेंटेंस, क्या जाता क्या है इसमें? हमने खोया क्या? हमने अगर अपने नर्सिंग स्टाफ से कहा कि जब जाते हो वहां तो सिर्फ एक धीरे से पूछो, सर आप ठीक है ना? आप पूछते हो, नो डाउट, लेकिन इट शुड बी मैंडेटरी। हमें अपने लोगों को ट्रेन कर देना चाहिए कि सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, कि सर आप कैसे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आपको, चलिए जल्दी ठीक हो जाएंगे। बस मीठी भाषा, भगवान करे जल्दी ठीक होकर अपने घर जाइए। तो हमारा जो कॉर्डियल एटमॉस्फेयर है ना, ये हमारे अपने हाथ में। वी कैन क्रिएट, वी कैन रेंडर द सर्विसेज, और ये वैल्यू एडेड। उसके बाद डिलाइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिलाइट? खुश हो जाना। अब सर्विस का कैडर बदल गया। इसका सर, मैंने अपनी लाइफ में मैंने एक आर्टिकल लिखा था, अपनी बुक में भी लिखा और एक आर्टिकल मैंने लिखा था, और उस आर्टिकल से जिनके बारे में मैंने लिखा, उन्होंने मुझको बुला के सम्मानित किया।
और सम्मानित किया और हमारे लिए फ्री ट्रैवलिंग कर दी कि आप एक टिकट कहीं भी इंडिया के कोने में जाओगे हम आपसे पैसे नहीं लेंगे। दैट वाज द सहारा। व्हाट हैपेंड? व्हाट इज द सरप्राइजिंग सर्विसेज? आई एम गिविंग यू द एग्जांपल कि हाउ आई वाज सरप्राइज्ड विद द सर्विसेज ऑफ दैट। सर, दिल्ली से पटना फ्लाइट जा रही थी, दिल्ली टू पटना, फॉग था, फ्लाइट कुड नॉट लैंड एट पटना, दे डाइवर्टेड इट टू वाराणसी, उन्होंने बनारस में रोक दिया। जब हम अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचते तो कई जरूरी काम हमारे छूटते हैं और हम अंडर स्ट्रेस होते हैं। हमारा हमें टेंशन होता है कि हमें तो पटने पहुंचना था और इन्होंने बनारस उतार दिया। उनकी मजबूरी है, ये वेदर है, ये बियॉन्ड ये मतलब ह्यूमन पावर है, जान तो खतरे में नहीं डालेंगे, लेकिन हमारे स्ट्रेस को उन्होंने कम कैसे किया, हमारे टेंशन को कम कैसे किया। हम इतने सरप्राइज हुए कि हमने उस पर आर्टिकल लिखा। जब हम सर वो फ्लाइट से नीचे उतर रहे थे सीढ़ियों से, तो दोनों तरफ सहारा के 5-5 अफसर खड़े थे, 5 इस साइड में, 5 इस साइड। एक बड़ हाथ में थी। वी आर एक्सट्रीमली सॉरी सर, वी कुड नॉट कैरी यू एट पटना, वी आर एक्सट्रीमली सॉरी। और बड़ हाथ में दे दी, वी आर एक्सट्रीमली सॉरी, कुड नॉट कैरी यू एट पटना, बट सर डोंट वरी, वी आर विथ यू, वी हैव द सर्टेन ऑप्शंस, वी हैव द सर्टेन ऑप्शन। सर, option number 1, if you want to travel by road, just now for Varanasi to Patna 275 km. If you want to travel by road, we can provide you the car. One car for 4 person. We can provide you. You may go. Sir, if you want to travel by train, we will carry you station. And if you are getting any train or ticket, we shall bear the cost of the train, cost of the fare. Option number 3, sir, neither you want to go by road, nor you want to travel by train. Sir, option number 3, Hotel Taj is here for you. You can stay as Taj at our cost. We will provide you the room, twin messes, but we will provide you at Taj. आप ताज में रुक जाइए अगर आप नहीं जाना चाहते हैं तो। ऑप्शन नंबर 4, सर, neither you want to stay nor you want to travel further, go ahead. Sir, one thing, you can go back. We shall carry you to Delhi again. Delhi, the flight is going again to Delhi, and we shall refund your fare. These are the 4 options for you. You can choose anyone, sir. अब आप एक बार बताओ, आपको ये ऑप्शंस कैसे लग रहे हैं? Is it not touching the heart? Is it not the winning a people? हाँ? क्या ये मन को नहीं छू रहे? कि हमारे स्ट्रेस को उन्होंने रिड्यूस कर दिया? I was under stress. I could not reach to my destination. और उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये सर्टेन ऑप्शंस दे करके हमें रिड्यूस कर दिया, बिल्कुल फ्री कर दिया कि ताज में रुके। हमने कहा चलो ये भी मजा ले लेते हैं, हम ताज में रुकने को हमने प्रेफर किया कि ताज में रुकेंगे और सवेरे इनसे कार मार के पटना निकल जाएंगे। तो रात में मैं ताज में रुका, ताज को एंजॉय किया, सवेरे में उन्होंने कार प्रोवाइड की और मैं कार से पटना निकल गया। तो देयर वाज नो स्ट्रेस। In all the cases, this services is known as, in my language, it is known as surprising. यह है डिलाइट। मैं खुश हो गया, आपकी सर्विस वैल्यू एडिशन थी, मैं उसके ऊपर खुश हो गया और आपने अच्छा किया, मैं खुश हो गया। लेकिन एक सर्विस की वो भी क्वालिटी समाज में चल रही है कि जब मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूं कि क्या कोई ऐसा भी कर सकता है। That is called surprising services. क्या ऐसा भी हो सकता है? So you will have to develop the ideas, innovate the ideas how we can provide the surprising services at low cost, because cost is a factor and you will have to take care of the cost. So without much costing, think, आप बैठ के जज कीजिए, आप खुद सोचिए
इधर उधर की बातें सोचने से तो अच्छा है ना कि आप इनोवेट कीजिए कि मैं अपनी इंडस्ट्री के लिए क्या कर सकता हूं, कि मैं डिलाइट सर्विस कैसे दे सकता हूं, मेरा वैल्यू एडिशन क्या हो सकता है, मैं सरप्राइज कैसे कर सकता हूं। बहुत से आइडियाज हैं, ए वास्ट स्कोप इज देयर। अगर हमें पहले से ये होता ना, तैयारी करते ना, तो अब हम खोज के लिख करके लाते कि विच आर द आइडियाज वी कैन गिव टू दिस हॉस्पिटल, एंड आई विल सेंड यू इन राइटिंग, आई विल सेंड थ्रू माय सन तेजेंद्र, आई विल सेंड। ये छोटे छोटे आइडियाज क्या हो सकते हैं जिसको हम डेवलप कर सकते हैं, कि हाउ वी कैन प्रोवाइड द सरप्राइजिंग सर्विसेज, एंड सरप्राइजिंग सर्विसेज इज द फैक्टर टू मेक एडवोकेट फॉर मी, to make supporter for me. If we are able to provide the delight services, if we are able to provide the surprise services, definitely people will love to retain with me. They will never try to leave me. They will be the more and more effective for me, best publicity for me. They will give the reference to the others. In any case you need, you go to the Shanti Mukam. He is the best hospital of Delhi. And make your institution best in Delhi. आप एक टारगेट ले लें कि हम अपने मीन्स में we want to be the number one. We want to be the number one in our industry. और मेडिकल साइंस, आपका साइंस कहता है कि whatever the mind can perceive, can conceive, can achieve. ये मेडिकल साइंस कहता है Whatever, जो भी दिमाग में सोचने की ताकत है, दिमाग उसको पा सकता है। ये मेडिकल साइंस ने प्रूव किया है। आदमी ने कहा चांद पे जाएंगे, यह नहीं गया। पहले आदमी नहीं कहता था चांद पे जाएंगे। हमारे जो शायर है ना सर, शायर, ये कवि और शायर जो पैदा हुए ना, जो पुराने जमाने में, तो वो अपनी महबूबा से कहते थे कि जानम तेरे लिए चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा। साले तू चढ़ेगा कैसे चांद पे, लाएगा काम से। लेकिन उनके मुंह से निकली हुई बातें कि चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा, ये कवियों के मुंह से निकला था, ह्यूमन मुंह से निकला था। और जब नील आर्मस्ट्रांग ने 69 में पहला कदम चांद पे रखा, तो उन कवियों की बातों को सच किया था जिन्होंने कभी अपनी महबूबा को खुश करने के लिए कहा था कि तेरे लिए चांद सितारे लाऊंगा। वो भी मेडिकल साइंस ने कहा कि ये भी प्रूव्ड है, ये भी होगा, क्योंकि ह्यूमन ने सोचा। दिस इज द ह्यूमन पावर, दिस इज द माइंड पावर, कि व्हाटएवर यू थिंक दैट इज टू बी, होने वाला है, होने वाला है। अमेरिका ने सोचा ये जो ट्रैफिक जाम हो रहा है, हाउ वी कैन गेट द सॉल्यूशन। कार जाम में फंस गई, एक बटन दबाओ, कार ऊपर उड़ जाएगी, और जब कार ऊपर उड़ के ट्रैफिक उतर जाएगा, ट्रैफिक क्लियर हो जाएगा, तो कार के नीचे उतारो, देयर इज नो जैम। अब वो कार डेवलप हो गई, कार डेवलप हो गई। तो आदमी ने सोचा ना, दैट वाज अ नीड। तो आपकी क्या नीड है कि हाउ वी कैन बी नंबर वन इन दिल्ली। आप ट्राई टू फाइंड आउट द नीड एंड ट्राई टू सॉल्व द नीड एंड गेट द इनोवेट द गुड आइडियाज, हाउ वी कैन डेवलप द आइडियाज दैट वी कैन बी द नंबर वन इन आवर दिल्ली। दिस इज नॉट इम्पॉसिबल, दिस इज नॉट इम्पॉसिबल, because there is no word impossible in the dictionary of the world. दुनिया में कोई ऐसी डिक्शनरी नहीं बनी है जिसमें impossible लिखा है, क्योंकि the word itself says that I am possible. Then where is impossible? आप नंबर वन बनने का सपना लिखिए, आप उन चीजों को इनोवेट कीजिए। You find out the lackness, lacking कहाँ है, लैकिंग कहाँ है। जब अपनी कमियां अपने से पता चलने लगेगी ना, तब उसका सॉल्यूशन भी निकलेगा। जब हम अपनी कमियों को खुद फाइंड आउट करेंगे ना, तो हमसे अच्छा कोई नहीं हो सकता। वी आर द बेस्ट जज फॉर आवरसेल्फ, और हमारी कमियों को हमसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता है। हमारी कमियां दूसरे बताएं, उससे बेटर है कि हम अपनी कमियों को खुद से ढूंढें।
और हम उन कमियों को दूर करने का प्रयास करें और अच्छे आइडियाज लेकर के और डेवलप करें, तो वो है इनोवेशन। जब हमारे पास इनोवेशन होगा ना, तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकेगा और हमारी इंडस्ट्री नंबर 1 पे जाएगी, नंबर 1 पे। सर्विसेज रिलेटेड टू पेशेंट केयर, नर्सिंग केयर, फूड, वी हैव टू टेक केयर ऑफ द फूड क्वालिटी, वी हैव टू, दीज आर द वेरी स्मॉल थिंग्स, बट वी हैव टू टेक केयर, क्योंकि एज एन अटेंडेंट, एज ए पेशेंट, माई चॉइस इज देयर। हम बाहर जाकर के ये एग्जाम्पल देते हैं कि व्हाट क्वालिटी ऑफ फूड आई वाज प्रोवाइडेड इन द हॉस्पिटल। ये बहुत छोटी चीज है, लेकिन इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा है, इस छोटी चीज का इम्पैक्ट कितना बड़ा है कि अगर बाहर जाके पेशेंट कहता है कि शांति मंगल में जितना अच्छा खाना मिलता है ना, उतना कहीं नहीं मिलता, तो ये हमारे लिए प्राउड की बात होती है कि हमें खिलाने की ताकत किसको भगवान देते हैं, जिसको ईश्वर ताकत देते हैं वही ना किसी को खिलाता है, तो हम खिलाने में क्यों कॉम्प्रोमाइज करें? क्यों नहीं हम अपनी फूड क्वालिटी को इतना ऊपर ले जाएं कि वो भी एक तरह से सरप्राइजिंग हो। वहां भी सरप्राइज का स्कोप है, फूड में भी सरप्राइज का स्कोप है। वी कैन प्रोवाइड पंक्चुअलिटी, टाइमली, क्लीननेस, क्वालिटी, चॉइस, बहुत चीजें जुड़ी हुई है फूड के साथ, बहुत चीजें जुड़ी हुई है। वी कैन आस्क फॉर द चॉइस। कभी हम किसी से पूछ के तो देखें कि बेटा क्या खाने का मन है, एक बार छोटी सी चीज पूछ ले। अब जो खाना आएगा अच्छा आएगा, उसको वो खाएगा, ठीक है, नो डाउट, वो बुराई नहीं करेगा। लेकिन अगर एक बार अगर हम किसी से पूछ लें, किसी से कोई स्पेशल किसी केस में क्या खाने का मन है, किसी एक स्पेशल केस में, तब वो जो बोलेगा और उसकी जो क्वालिटी होगी, उसकी सोच होगी, वो डिफरेंट। हालांकि ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कि हमें एक जगह खाना बनाना है, एक मेनू तय करना है, सब कुछ है, बट डिस्पाइट दैट वेदर वी आर हैविंग एनी स्कोप टू आस्क समवन व्हाट इज योर चॉइस टुडे, वी कैन आस्क फॉर द फीडबैक, वी कैन आस्क फॉर द फीडबैक मेनू, और जो मास मेनू होगा हम उस पर कंसिडर कर सकते हैं। मास मेनू, हमारे आईपीडी में 200 लोग हैं, अगर 200 लोगों में जो मैक्सिमम हमें कुछ फूड के लिए चॉइस अगर पूछी जाती है, हम 200 लोगों में मैक्सिमम कोई चॉइस है ना, तो हम अपने मेनू को चेंज कर सकते हैं। वी कैन सेटिस्फाई, वी कैन सेटिस्फाई। तो हमारा फूड, क्लीननेस, सिक्योरिटी, ये सारे छोटे छोटे फैक्टर्स हैं कि वेदर वी आर प्रोवाइडिंग द गुड सिक्योरिटीज फ्रॉम द बिगनिंग, फ्रॉम द बिगनिंग। वो मैंने कहा ना कि अगर कार लगाई और बाहर से निकल के गए तो देखा लैपटॉप है, वो डर से उस हॉस्पिटल में नहीं आएगा, कह रहे बाहर कार लगा के जाओगे, अंदर से बैग गायब हो जाए। किया किसने, दोषी कौन, नुकसान किसका भोग रहे हम। और अगर हमने सिक्योरिटी टाइट की होती, हमारे लोग वहां पर इतने एक्टिव होते कि हम किसी सामान को गायब नहीं होने देते, तो ये तो हमें डैमेज नहीं करता, हम इसे बचा सकते थे। तो सिक्योरिटी सिस्टम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल नेसेसरी इक्विपमेंट्स, ये तो मेडिकल में बहुत जरूरी है। क्या हमारे पास वो सारी चीजें हैं? ऑल द सर्विसेज अंडर वन रूफ। आज का पेशेंट क्या चाहता है? सारी सर्विसेज एक जगह पे। आप कहेंगे कि हम एमआरआई के लिए बाहर ले जाएंगे, और आप कहेंगे एमआरआई हम अपने हॉस्पिटल में दे रहे हैं, आप कहेंगे सीटी स्कैन हम बाहर कराएंगे, आप कहेंगे ये टेस्ट हमारे यहाँ नहीं हुआ है। लेकिन आज सर कंपिटेटिव मार्केट में मैं विद रिगार्ड्स फोल्डेड हैंड, दोनों हाथ जोड़ के ये कर रहा हूँ, एज ए पेशेंट कर रहा हूँ, एज एन अटेंडेंट कर रहा हूँ कि आज का अटेंडेंट, आज का पेशेंट सारी सर्विसेज को एक छत के नीचे देखना चाहता है, एक छत के नीचे। I don't want to move to the X-ray room for my chest X-ray. I want
it should be done at my bed with the help of the portable X-ray. If the facility is there, तो मैं क्यों जाऊंगा एक्सरे रूम में? Why not the X-ray will come to my bed? Is it not possible? Quite possible. So we will have to take care of these things. कि आज के कस्टमर को, आज के पेशेंट को how we can provide the best services, best, all the services under one roof, all the pathological tests under one roof, एक छत के नीचे सारे टेस्ट. तब वो बाहर जाके कहता है शांति मुकुंद में जाने के बाद यार अटेंडेंट की भी जरूरत नहीं है, तुम्हारा कोई नहीं है ना, डोंट वरी, सिर्फ पेशेंट को जाके छोड़ दो. वहां लोग इतने अच्छे हैं ना कि वो बेटे के रूप में सेवा करेंगे. वहां लोग इतने अच्छे हैं ना कि नर्सेस के रूप में बेटियां मिल जाएंगी. आप एक बार जाके छोड़ दो. आप ये मत चिंता करो कि रात में हमें रहना है, वो रात में केयर करने वाले लोग हैं. तो जब अटेंडेंट को ये पता चलता है, देखो कैसा सीन होता है, बूढ़े माँ बाप हो अगर दिल्ली में और बच्चे अमेरिका सेटल हो, और अगर वो बीमार हो जाए तो आप जरा सोच के देखो उसके एक्सपेक्टेशन क्या होंगे, क्या उसकी सोच होगी. बेटा बाप के पास नहीं आ सकता, बेटी बाप के पास नहीं आ सकती, लेकिन बेटे और बेटी को ये भरोसा है कि उस हॉस्पिटल में उनको बेटा और बेटी दोनों मिल जाएंगे. तब उस हॉस्पिटल में ना वो पैसे देने से डरेगा, ना वो कॉस्टिंग से डरेगा, ना वो खर्चों से डरेगा, और वो 50 लोगों को कहेगा कि अगर जरूरत पड़े ना तो शांति मुकुंद में जाओ, वहां इस तरह की सेवा मिलती है. हमें सोसाइटी जो है ना वो नीश फैमिली है, नीश फैमिली. बच्चे बाहर हो गए, अब ज्वाइंट फैमिली नहीं है. ज्वाइंट फैमिली में केयर करने वाले बहुत लोग थे, अब नीश फैमिली है, हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा, और वो भी अमेरिका, वो भी इंग्लैंड, बूढ़े बूढ़ी यहाँ. पैसे हैं, साधन है, सब कुछ है, लेकिन मैन पावर नहीं. तब उसको उस समय जरूरत होती है कि हम अगर एक्स्ट्रा कॉस्ट लेकर भी रात भर के लिए अटेंडेंट उसके पास छोड़ दें. इनको हम बोले कि अगर आपको अटेंडेंट की जरूरत है तो अटेंडेंट की कॉस्ट लग सकती है, वो कॉस्ट भी देने को लोग तैयार होंगे, बशर्ते कि वो 24 घंटे उसके पास एक बेटा बनकर रह जाए कोई. तो मैं एज एन अटेंडेंट कर रहा हूं कि मैं अपने माँ बाप के लिए पैसे देने के तैयार हूं, बशर्ते कि कोई उस तरह से वहां केयर करने वाला मिल जाए. तो आज उन चीजों की भी जरूरत है. दैट इज कॉल्ड सरप्राइजिंग सर्विसेज. दैट इज कॉल्ड वी कैन प्रोवाइड, वी कैन थिंक ओवर इट. ठीक है, प्लस माइनस चीजें बाद में होगी, हम इसका प्लस माइनस बाद में देखेंगे, लेकिन हम इस टॉपिक को कंसिडरेशन के लिए हम अपने बोर्ड में रख सकते हैं या नहीं? हाँ? रख सकते हैं, हम रख सकते हैं. एज ए ओल्ड सिटीजन हम क्या चाहते हैं? व्हाट आई वांट, व्हाट आई वांट. हमारे बच्चा हमारे पास नहीं है, व्हाट आई वांट, आई वांट ए चाइल्ड फॉर मी एंड द हॉस्पिटल में प्रोवाइड ए चाइल्ड फॉर मी. और उस आदमी की ड्यूटी वहां पर लगाई जाए जो एक स्टाफ बन के मेरे पास नहीं आया, मेरा बेटा बन के मेरे पास है. उसके बाद देखिए क्या होता है, क्या रिजल्ट होता है उस हॉस्पिटल का, और क्या सेटिस्फैक्शन होता है उस पेशेंट को, और क्या सेटिस्फैक्शन होता है उसके बेटे को जिसके पास करोड़ों की दौलत है. He can give. अगर उसका बाप कहता है कि बेटा तुम्हारी कमी यहां महसूस नहीं हो रही है, मेरे को तो हॉस्पिटल ने एक बेटा दे दिया है, तो बेटा पूछेगा हॉस्पिटल से कि सर मैं क्या कर सकता हूं. डेफिनेटली पूछेगा, क्योंकि संवेदना सबके अंदर है, इमोशंस सबके अंदर है. हर एक इंसान के अंदर एक दिल है जो धड़कता है, हर इंसान का दिल धड़कता है. मेडिकल साइंस वाले सब लोग जानते हैं, लेकिन उस दिल को छूने वाला भी कोई होना चाहिए, उस दिल को धड़काने वाला भी कोई होना चाहिए. अगर आपने छू दिया उस दिल को तो पैसे कहीं से कम नहीं आने वाले. पैसे कमाने के तो 2 रास्ते भी, बहुत से रास्ते हो सकते हैं. पैसे हम किसी को परेशान करके भी कमा सकते हैं, पैसे किसी के दिल को जीत के भी कमा सकते हैं,
लेकिन जो दिल को जीत के पैसे कमाए जाते हैं ना, उस पैसे का वैल्यू अलग है, उस पैसे का वैल्यू अलग है। तो वी कैन प्रोवाइड, वी कैन थिंक ओवर, वी कैन कंसीडर कि हाउ वी कैन गिव द सनराइजिंग सर्विसेज। Nursing care, food team, okay, yes, all the services under one roof. Cordial behavior, proper listening. This is very important, sir. In my opinion, best part of the behavior science. When we are talking about the behavior science, what does it say? Behavior science. Behavior science, first criteria: listen to others. Listen to others. Don't interrupt. Without interruption, good listening. That is satisfaction. Listening gives satisfaction. If I am listening to someone, 50% उसकी बीमारी कम हो जाएगी सर। अगर हमने उसको कहा कि तुम बोलो, जितना बोलना तुम बोलो, मैं सुन रहा हूँ, सारी चीजें मेरे लिए बेकार हो सकती हैं, लेकिन उसकी भाषा जो बोल रहा है ना, वो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि वो एक ही चीज को बार बार कर रहा है, वो एक ही बीमारी को 25 बार, और मैं समझ चुका हूं कि उसको क्या है, लेकिन मैं उसको फिर भी, हम समझ गए ना, आप छोड़िए ना, हम समझ गया, आप चुप रहिए। इधर हमने उसको सेटिस्फाई किया, एंड पेशेंट सेटिस्फैक्शन इज आवर फर्स्ट मोटो। हमारा फर्स्ट मोटो है कि पेशेंट सेटिस्फैक्शन। लेट हिम टॉक। हाँ ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है, हम सब सुने, सब समझ गए, हम सब उसी तरह से करें, आप चिंता मत कीजिए। मैं वो क्या बोल रहा मैं नहीं जान रहा, लेकिन मेरे शब्द, हाँ सब ठीक है, मैं देख रहा हूँ, सब ठीक हो जाए, ये रिस्पॉन्स कर रहा हूँ, और वो बोले जा रहा है। जब तक वो अंदर से पूरा बोलेगा नहीं ना, उसको हमारी किसी चीज पर विश्वास नहीं है। एज ए पेशेंट कभी हम भी बाहर निकल के कहते हैं कि डॉक्टर ने पूरा सुना नहीं और दवाई लिखी, और उस दवाई का असर भी हम समझते हैं 50% का होता है, क्योंकि मेंटली आई एम नॉट एक्सेप्टिंग दैट। मेंटली आई एम नॉट एक्सेप्टिंग दैट। क्यों? क्योंकि उसने हमको सुना नहीं, उसने हमको सुना नहीं। इसे पिछले बार मैंने एक घटना बड़ी सुंदर बताई थी। मैंने अपने हड्डी के डॉक्टर की जो घटना बताई थी कि एक लेडी ने आकर के उसको ये कहा कि मेरे घुटने में दर्द है। अब डॉक्टर साहब स्टेथो लगा करके सब चेक कर रहे थे, तो लेडी लास्ट में उठी, कहती है कि हम कहाँ आके फंस गए, दर्द घुटना में है और आला छाती में लगाते हैं, मेरे घुटने में तो आला लगाया ही नहीं। अब डॉक्टर बोला सॉरी 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 सॉरी, भूल गए मम्मा, भूल गए सॉरी। 5 बार उसके घुटने पे आला सटाया, कम से कम मेरी दवा का इफेक्ट खत्म ना। तब उसने कहा, बहुत सोच के बाद ये कहा जाता है कि प्रॉपर लिसनिंग एंड सेटिस्फैक्शन। कि घुटने में भी लोग आते हैं, वाले लोग आते हैं, हमको वो भी करना है, हमको उसे भी सेटिस्फाई करना है। अब आप कहिए कि कोई डॉक्टर किसी के घुटने में नी में आला लगाएगा, स्टेथो लगा के देखेगा, लेकिन नहीं, फॉर कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमें वो करना पड़ेगा ना, तो वो भी करेंगे, बिकॉज आई वांट टू सेटिस्फाई माय कस्टमर। ट्राई टू रिजॉल्व द इश्यूज। कोई इश्यूज अगर वो उठाते हैं, किसी तरह की प्रॉब्लम उठाते हैं, डोंट टेक नोट्स। इस कान से सुना, उस कान से छोड़ दिया, नहीं, उसके इश्यूज कुछ भी हो सकते हैं, आप उसको नोट डाउन करें, उसके सामने कुछ नहीं करें। अच्छा ठीक है, मैं इसको लिख के ले जा रहा हूँ, मैं देखूंगा आपने क्या लिख के किया, उसको कोई मतलब नहीं, लेकिन उसको पता चला कि मेरे सामने इन्होंने नोट डाउन किया है, मेरे प्रॉब्लम को इन्होंने लिखा है। अब वो बाहर जाके कहेगा कि वो तो हॉस्पिटल ऐसा है कि हम कोई प्रॉब्लम बताते हैं ना, तो तुरंत कागज पर लिखते हैं उसको कि मेरी प्रॉब्लम क्या थी। दैट इज ऑल्सो ए सेलिंग पॉइंट, दैट इज ऑल्सो ए विनिंग पॉइंट फॉर मी। लिख लेना, हम क्या उस कागज का करेंगे उसको कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसका सेटिस्फैक्शन है कि मेरी प्रॉब्लम को इन्होंने नोट डाउन किया, रिजॉल्व करने की कोशिश की। हम्बलनेस, नम्रता, इन ऑल द केसेस हमें ये क्वालिटी नहीं छोड़नी है, नम्रता नहीं छोड़नी है। हमारी आवाज मीठी, हमारे शब्द मधुर, क्योंकि जो आया है ना, कष्ट में आया, कोई शौक से तो आया नहीं, मेरे कितनी प्रॉब्लम में आया है, और मेरे पास आया है क्योंकि वो हम पर
भरोसा करके आया। ये कितनी बड़ी चीज है। उसका भरोसा है हम पर कि मेरा ट्रीटमेंट ठीक होगा, यहाँ लोग अच्छे मिलेंगे, और हम उससे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल न करें, हम नम्रता से ना बोलें, तो उसके मन पर क्या बीतेगी। तो नम्रता जो है ना, हम्बलनेस, हमारे पास सबसे बड़ा अगर ऑर्नामेंट है ना, सबसे ब्यूटीफुल ऑर्नामेंट अगर वर्ल्ड में किसी ने कहा है ना, तो नम्रता को कहा है। नम्रता सबसे सुंदर गहना है, इंसान की ताकत है सबसे सुंदर, और नम्र आदमी जिंदगी में कभी हारता नहीं है, उसकी जीत होती है। झुकने वाला कभी नहीं हारता। लोग कहते हैं छोटे माफी मांगी नहीं सकते। लोग कहते हैं मैं माफी मांगूंगा छोटा मिलूंगा, है ना? नहीं बेटा, छोटे तो कभी माफी मांगी नहीं सकते, वो तो झुकना जानती ही नहीं है। माफी वही मांगता है, झुकता वही है जिसको अंदर से ताकत मिल चुकी है, जो समझ चुका है कि जिंदगी क्या है, वही झुकना भी जानता है, क्योंकि उसको पता है कि झुकने पर फल लग जाएंगे, और जितने फल लगेंगे उतना ही ज्यादा हमको झुकना पड़ेगा। जितने फल लगेंगे उतने ही झुकना पड़ेगा, और जब फल लग जाएंगे ना, तो हम पर पत्थर चलेंगे, हमारी आलोचना होगी। आप जब नंबर 1 दिल्ली में बन जाओगे ना, तो आपके आलोचना करने वाले बहुत लोग होंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं, आपके राइवल बहुत पैदा होंगे, आपकी कमियों को खोज के निकालेंगे, क्योंकि उनको आपसे ईर्ष्या होगी, उनको आपसे जलन होगी। आपके बढ़ते हुए देख के आपको फल लगे ना, फल लगे तो पत्थर तो चलने नेचुरल, और पत्थर को मारता है जिसको फल नहीं लगे। जिसको फल नहीं लगे पत्थर वही मारेगा ना। आप उसके लिए भी भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे ईश्वर, इसको फल दे दो, ये दूसरे को क्यों पत्थर मारता है। फल दे देता है, बिग हैंड फॉर सर। पत्थर खा के ही फल देता है। हेलो, सोच लो जरा, समझ सोच की सोच देखो इधर। हमने तो सिर्फ कहा कि पत्थर चलते हैं, और इन्होंने कर दिया कि पत्थर खा के ही पेड़ फल देता है, खा के भी फल देता है। दैट इज द पावर ऑफ हम्बलनेस, नम्रता। गुड कम्युनिकेशन। How do I communicate with my people? What's my language? What's my language? What's the quality of my voice? My voice quality is the supreme. That is the power of my voice. How do I speak? वॉइस के बारे में कहते हैं ना, उसमें भी 4 क्वालिटी होती है। वॉइस को क्या चाहिए? स्वीट, स्वीट, humble, mature, clear. My voice should be clear. First quality. आपने कुछ ऐसे बात की, अब ठीक है, हमने समझना, आपने ठीक है, आपका प्रॉब्लम तो हमने देख लिया, ठीक है, हम समझ लेंगे। अरे what you say? क्या इसमें क्लैरिटी थी? जो आपने कहा कि हमने देख लिया, समझ लिया, हम सब कर लेंगे, हमने कर लिया, अब वो सोच रहा है कि ये क्या बोल गया। Was it clear? No, then my voice should be clear. What I say, that's my communication. And I have to communicate in such a language, it should penetrate to the hearts of the people. Deep penetration into the heart of my voice is there. हम ऐसी बोली बोले जो उसके दिल के अंदर जाके छू ले, मन का पाक, मन को शीतल, औरों को भी शीतल करे और खुद को भी शीतल करे। That is the quality of a voice. So my voice should be clear. First quality, my voice should be clear. Voice की दूसरी quality, humble, नम्र, sweet, तीसरी quality, sweet, humble, और सबसे supreme quality, modulation. Sweet, humble, clear, module. Are you watching my voice quality? There is modulation. Sometimes when I used to say it is going upward,
and the next moment it is coming down. When I am talking, my voice is running like waves. That is called modulation. And the module language, module voice penetrate to the heart. एक simple word है ना, छोटा सा, बेटा, कितने शब्द हैं? एक बट्टा, दो अक्षर है ना, दो अक्षर। आप किसी से पूछो, कहेगा बेटा, 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 बेटा। Different people, they are talking in different tone. There is no modulation. And when I am calling to someone, beta, which one is better? Be, when I am saying be, it is going upward. Be, when I am saying ta, ta, it is coming down. Beta, that is the quality of, supreme quality of the voice. And that is my subject, because in MBA classes, I used to take the classes on effective communication. How my communication can be effective, I can win the others. Because the winning of the people is only with the art of your effective communication. If you have the communication proper, if you have the communication effective, you can win anyone. Then your power is your communication. There must be the effective communication, good communication. Giving importance to the others, very good. Transparency. Hello. आज के समय में सब लोग यही चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी। अटेंडेंट बाहर खड़ा होकर तरफता है कि पता नहीं अंदर क्या हो रहा है। सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन उसके मन में एक सोच है, पता नहीं अंदर क्या हो रहा है। Can we develop some such methods that we are transparent to the community? In some cases, it is not possible. But क्या हम किसी भी पेशेंट के बारे में शाम के समय या कोई एक ऐसा टाइम फिक्स करके उसका बुलेटिन जारी कर सकते हैं, उसके अटेंडेंट को कह सकते हैं कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ योर पेशेंट, इट इज ओके, इट इज इम्प्रूविंग, इट इज डेटोरिएटिंग। मैं एक बार गया था सर, वो टाटा मेडिकल कॉलेज में जमशेदपुर, हमारे क्लाइंट का एक्सीडेंट हुआ था, उसका नी टूट गया था। दैट वाज वेरी सिंपल केस, पटेला टूट गया। दैट वाज वेरी सिंपल ऑपरेशन, वेंट फॉर सर्जरी, टाटा मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। क्या होता है ये भी आप देखो, क्या हॉस्पिटल का होता है। मैं एक चीज सुना रहा हूँ, ऐसा भी होता है। टाटा मेडिकल कॉलेज इटसेल्फ एक बहुत बड़ी संस्था है, करोड़ों अरबों रुपए की संस्था है टाटा मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर, है ना। ऑपरेशन के लिए गया, चूंकि जा रहा था, रास्ते में एक्सीडेंट हुआ तो नजदीक पड़ा, ऑपरेशन उसका हो गया, पटेला का ऑपरेशन हुआ। द ऑपरेशन वाज ओके, नो प्रॉब्लम। अब डॉक्टर ने लिख दिया वन मॉर्फिन इन वन नॉर्मल सलाइन। अब नॉर्मल सलाइन जो चला उसमें नर्स ने मॉर्फिन डाल दिया, इसको नींद आ जाए। या इससे 25 साल 30 साल पहले की बात में बता रहा हूं। मॉर्फिन डाल दिया गया, ये सो जाए, दर्द से ठीक हो जाए। जब वो पानी की बोतल खत्म हुई तो दूसरी नर्स आई, उसने इंस्ट्रक्शन देखा वन मॉर्फिन इन वन बॉटल। उसने फिर पानी की बोतल लगाई और फिर से मॉर्फिन डाल दिया। 2 मॉर्फिन चली गई अंदर, 2 मॉर्फिन चली गई। जब वो पानी खत्म हुआ, तीसरी नर्स आई, उसने जब देखा कि वन मॉर्फिन इन वन बॉटल, उसने तीसरी मॉर्फिन डाल दी। इस तरह से 4 मॉर्फिन रात भर में चली गई और वो डिप हो गया, डिप हो गया। मुझको पता चला, मैं उसके हालचाल लेने गया, सुभाष वर्मा उनका नाम था, मैं देखने गया तो मैंने वहां देखा कि आईसीयू के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड डिस्प्ले हो रहा है, हर आईसीयू के नंबर के साथ उसकी कंडीशन लिखी हुई है। आईसीयू 2 improving, ICU 3 stable, जब आया ICU 7 मिस्टर सुभाष वर्मा वेरी क्रिटिकल, सामने लिखा हुआ है वेरी क्रिटिकल। 50 दिन 50 डेज वो आदमी
न मरा और न जिंदा हुआ, पड़ा रहा। 50 दिन के बाद वो मतलब 11 ईयर्स कंपनी में थे, कंपनी ने खर्चे बेयर की। 50 दिन के बाद सर उसकी एक फिंगर ऐसे, एक फिंगर हिलने लगी। जो हम लोगों ने किसी फिल्म में देखा ना मुन्ना भाई में, कि जैसे वो पड़ा हुआ है तो उसकी एक उंगली हिली, तो हल्ला किया कि ये सच है। उसकी भी एक फिंगर हिली और उसके बाद में जो उसकी इंप्रूवमेंट स्टार्ट हुई, तो डे बाय डे आईसीयू का बोर्ड बदलता चला गया। इम्प्रूविंग स्टेबल बच के बाहर आ गए। लेकिन सारा हिस्सा जो है ना, नीचे का हिस्सा पैरालिटिक हो गया, दोनों पाँव में कार हो गए, व्हील चेयर की लाइफ हो गई। वो आदमी 15 साल भी जिंदा रहा व्हील चेयर में, लेकिन एक छोटी सी भूल, 1 मॉर्फिन, 1 बॉटल, इंस्ट्रक्शन वाज नॉट क्लियर, they wouldn't follow. Result, so we have to take care. We have to take care, especially for the nursing, हमारी बेटियां जो हैं उनके लिए, कि whether what the instructions have been given by the doctor, whether I am following up to the mark. उसी समय मेरे मन में बात आ गई, अगर ये छोटी सी भूल से एक आदमी के दोनों पाँव में बात हो सकती है, ये ह्यूमन एरर, तो हम उसके एरर को तो नहीं मिटा सकते सर, लेकिन ह्यूमन एरर को तो कम कर सकते हैं। और वो कैसे कम कर सकते हैं? बाय पेइंग द गुड अटेंशन, बाय पेइंग द ब्यूटीफुल अटेंशन। तो रेगुलर इंफॉर्मेशन टू द अटेंडेंट्स थ्रू मेडिकल बुलेटिन। ये हमारी सोच होती है कि एक अटेंडेंट को अगर ये पता चलता रहे कि हमारे पेशेंट की हालत कैसी है, हमारा पेशेंट कैसा है, क्या हम प्रोवाइड कर सकते हैं? I don't know whether it is possible or not. Huh? Possible. Huh? Very good. Big hand for Shanti Mukul. मेडिकल बुलेटिन जारी करना, क्या ये सिर्फ नेताओं के लिए जारी होगा? हमारे लिए हर कस्टमर किसी नेता से कम नहीं, क्योंकि we love our customers. Okay. और भी कुछ है क्या? फॉलोअप सिस्टम सर, ये सर मेरे मन में एक बात आई है, पता नहीं ये पॉसिबल है कि नहीं। अगर हम एक डिपार्टमेंट ऐसा सेट करें जिसमें 2 आदमी की ड्यूटी लगाए, सेपरेट एक कमरा, और आईपीडी के टोटल नंबर, नाम, नंबर, और 15 दिन के बाद, 10 दिन के बाद एक टेलीफोन कॉल करें, आप कैसे हैं, आप हमारे शांति को घूमने आए थे, आप कैसे हैं, बस एक कॉल सर, आप कैसे हैं, आप क्या सोचते हैं उस पेशेंट के मन में क्या रहेगा? ये तो किसी ने नहीं किया था, क्या वो सरप्राइज होगा या नहीं होगा? अच्छा, हमारा इसमें लगा क्या? अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो फिर से हमसे बात कीजिए, अगर आप चाहेंगे तो हम आपके डॉक्टर से भी बात करेंगे, कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। वो पेशेंट खुशी से पागल हो जाएगा, वो जाके बाहर 50 लोगों को बोलेगा कि शांति मुझसे मुझको कॉल आते हैं, दे आर कॉलिंग अबाउट माय वेलफेयर, वो हमारे स्वास्थ्य के बारे में पूछते हैं, दे आर आस्किंग, दे आर सो कंसर्न फॉर मी, व्हाट अ वंडरफुल हॉस्पिटल इज देयर इन दिल्ली, आई थिंक वी कैन डू, इट इज नॉट इम्पॉसिबल। बट एक चीज हम जरूर कहेंगे कि इसके लिए सेपरेट, विदाउट टेंशन, एक आदमी 2 आदमी को हम इसके लिए अपॉइंट कर लें। योर ड्यूटी इज ओनली टू फॉलो अप द केसेस, ओनली टू फॉलो, नथिंग मोर। अब वो कोई काम नहीं है, आप सिर्फ उसको फॉलो कर लीजिए। सर एक छोटा सा खर्चा पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट करेंगे आप, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट सर, ये इन्वेस्टमेंट, अच्छा ये इन्वेस्टमेंट कितना सुंदर होगा सर, नहीं सर, ये कितना सुंदर होगा, हम लोग इसको कर सकते हैं, वी कैन डू।
क्योंकि हम एक अटेंडेंट की हैसियत से कर रहे हैं, एक पेशेंट की हैसियत से कर रहे हैं कि हमको तो बहुत अच्छा लगेगा कि अगर हमको कोई 15 दिन के बाद एक दिन पूछ ले कि आप कैसे हैं। थैंक यू वेरी मच सर। बिग हैंड फॉर सर। बिग हैंड। देखो बड़ों की ही बातें होती हैं, छोटों के मुंह से भी सुन करके। जो अपने सब्जेक्ट का भी नहीं है और छोटा है, छोटे काम में लगा हुआ है। आपकी तुलना में तो हमारा प्रोफेशन ऐसा नहीं है ना, लेकिन उसके बावजूद भी अगर बड़े इज्जत करते हैं, कदर करते हैं, और अगर ये कहते हैं कि हमें अच्छा लगा हम इसको फॉलो करेंगे, तो ये उनकी महानता होती है। और वैसे ही लोग जिंदगी में ग्रेट कहलाते हैं, ग्रेट, जो किसी की बात को सुन के इग्नोर नहीं करते, उसको समझने की कोशिश करते हैं। They try to understand the result, whether it is result oriented or not. So ability of the doctors on phone, और I think कि हमारा ये एक चीज और है, फीडबैक। ये फीडबैक जो है ना सर, हम पेशेंट से मिले और अटेंडेंट से मिले, दोनों से मिले। पेशेंट से मिले और अटेंडेंट से मिले कि आपको यहाँ आके कैसा लगा। एक फॉर्म, ऐसा फॉर्मेट तैयार करें कि जब जाने के समय उसको फॉर्म दें। अगर पेशेंट भी भरने की स्थिति में है तो भरे कि हमारे एक्सपीरियंस कैसे रहे आपके साथ, तो उसमें ये बताएगा। वेल अटेंडेंट, he has suffered, yes sir, yes sir, and in addition to that अगर हम अटेंडेंट का भी व्यू लेना चाहें, अटेंडेंट की प्रॉब्लम ये है, I don't want to debate this, कि अटेंडेंट बदलता रहता है। वो it is like वो blind people, ओके जिसने देखा, अपने blind आदमी ने देखा कि एलिमेंट क्या है, उनका रॉ, हाँ वो 7 तरह की चीज बता दी। खंबा है, पूंछ को पकड़ के कुछ कर दिया, दांत को पकड़ के स्पेयर कर दिया। तो ठीक है, कम से कम इतना तो है कि सर वी कैन गेट द फीडबैक फ्रॉम पेशेंट, जो पेशेंट उसके साथ तो हुआ है, पेशेंट फीडबैक, ओके, पेशेंट फीडबैक रिपोर्ट भी वेरी गुड, बहुत अच्छा। हम नहीं जानते थे, लेकिन हमने जो मन में आ बात कही है तो थैंक यू वेरी मच सर। थैंकिंग एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल। आपने टाइम दिया, हमारे पास तो शब्द नहीं कि आपके प्रति कैसे आभार प्रकट करें, लेकिन जितना भी समय आपने दिया दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। जो मान सम्मान आपने दिया सर, हम शब्दों में नहीं आपको व्यक्त कर सकते। That was only my personal opinion, not any hard and fast, but something again I would like to say, any industry which is growing and which wants to grow more and more, he has to take care of his raw material, and the raw material are people, and we have to take care of the raw materials. जितने ज़्यादा हमारे पास रॉ मटेरियल होंगे, हमारा प्रोटेक्शन उतना ही ऊंचा होगा। तो हमें अपने पास रॉ मटेरियल बढ़ाने हैं। एक बार जो हमारे पास आ गया, he should be supporter for me, he should be advocate for me. So that is the best way to earn more and best way to retain. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, sir. So, how was it? My friends, I would love to ask you all that we always receive a lot of information, but then implementing it, executing it, and getting the fruits is a little difficult task, but then when you do it, you feel good. You feel that you have done your job complete. Thank you very much, sir. Now, I would ask our Managing Trustee, OP sir, to come and please give him the momentum and shawl. बेटा हम घर के हैं और घर के लोगों को बार-बार ऐसे नहीं किया जाता, प्लीज। सर ये हमारा प्यार है। हम घर के हैं सर, घर के।
प्लीज। कंसिस्टेंसी जो है वो थैंक यू। Yeah. मैं हमारे मैनेजिंग ट्रस्टी ओपी सर को थोड़ा सा 2 शब्द कहें सर आप आज के हमारे टॉपिक के लिए और स्पीकर के बारे में। वंडरफुल स्पीच के बाद कि हम लोगों को सबको अपने आप ये सोचना है कि हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या हमारे पॉसिबल है हमको करने का, और हमको वो करते रहना चाहिए। एक थॉट जो मेरे पास दिमाग में आ रहा है कि हम देखते हैं कि सुबह मॉर्निंग में आईसीयू के बाहर एक लाइन लगी रहती है, पेशेंट्स आर वेरी कीन टू पेशेंट अटेंडेंट्स आर वेरी कीन टू नो एज टू व्हाट इज हैपनिंग टू देम। व्हाई कांट वी हैव a time slot for that, and we should give this information not only to the patient attendant but also to the family for that matter. That sort of a system I would request ML to work out, and we should be able to do it for that matter. Thank you very much. Punjab Singh always comes up with lot of motivational approach, and we should follow to the letter that we can. Thank you very much. Thank you very much, sir. With the highest respect, may I please call upon our CEO sir and say a few words for today's talk. Please. I think वर्ड्स इनफ नहीं हैं जो पंजाब सिंह जी ने हमको बताया, और ऐसा कुछ नहीं बताया जो हम नहीं जानते थे, लेकिन जानते हुए भी अनजान बने हुए थे। एक दफ़ा नींद से जगाया है उन्होंने, और मैसेज ये दिया है कि अगर जागे हो तो अब जागते रहना। उन्होंने कहा कस्टमर, क्लाइंट, सपोर्टर, एडवोकेट, और इसका सबका रूट कहाँ पे है? उसका रूट है सर्विस में, उसका रूट है कमिटमेंट में, कॉन्टिन्यूटी में, ट्रांसपेरेंसी में। आप कम्युनिकेट कर रहे हैं और अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर रहे, या अच्छे से कर रहे हैं लेकिन गलत बता रहे हैं, इट विल नॉट अर्न द रेपुटेशन, इट विल नॉट गिव यू क्रेडिबिलिटी। बहुत से हॉस्पिटल इस काम को करते हैं। मैं इनफैक्ट यही कहना, बार बार यही बात रिपीट करना चाहूंगा कि जो कुछ भी बताया है वो सबको मालूम है, लेकिन शायद हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। इसका मतलब ये नहीं है, अगर आप एक फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे को पूछो 2 2 क्या होता है तो कहेगा 4, और जिसने पीएचडी किया मैथमेटिक्स में भी 4 कहेगा। तो ये नहीं कि पीएचडी करने का फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि अल्टीमेटली जो यथार्थ है, जो मैं कहना चाहता हूँ, पंजाब सिंह जी ने जो भी बोला है वो यथार्थ है, उसको जुठलाया नहीं जा सकता। और अगर हम वो नहीं करेंगे तो नुकसान किसका होगा? नुकसान हमारा होगा और हमारी संस्था का होगा। Nobody can grow in isolation. If we want to grow, we have to grow with the institution. अगर मेरी इंस्टीट्यूशन बढ़ेगी तो वो बढ़ेगा। जहाँ तक ये बात है कि क्षमा बुलंद को चाहिए, मैं एक बहुत रीसेंट किस्सा मैं आपको बताना चाहूँगा। मेरे बेटे ने LIC की एक पॉलिसी सरेंडर की, और उसके लिए पंजाब सिंह के बेटे जो महेंद्र जी हैं, उनको बोला कि आप इसका जो पेपर वर्क है वो पूरा करवा दीजिएगा। फॉर लास्ट 8 months he was struggling
एंड प्रोबब्ली विद ऑल सिंसियर एफर्ट्स वो पॉलिसी सरेंडर नहीं हो रही थी। अभी लगभग 8 दिन पहले लगभग जब इनके बेटे को ये मालूम पड़ा कि वो पॉलिसी जो सरेंडर की दी थी और जो एजेंट जिसने वो पॉलिसी की थी वो वहां से पेपर उठा के ले गया कि मैं ये पॉलिसी सरेंडर होने ही नहीं दूंगा। Mahinder, his son, he talked to the person, concerned people, तो उन्होंने कहा जी कि वो तो जो क्लाइंट है हमारा माय सन, उसने ऑलरेडी कह दी कि मेरे को पॉलिसी सरेंडर नहीं करनी है, मेरे को बदला के ये पॉलिसी करवाई गई है। Mahinder spoke to me, and before he spoke to me, he spoke to his father, that Mr. Punjab Singh. Mr. Punjab Singh spoke to the fifth person. He said कि आप जो मर्जी कर रही है पॉलिसी में सरेंडर नहीं होने दूंगा, ये पॉलिसी बड़ी पॉलिसी है और मेरे को बिजनेस का बड़ा लॉस होगा उससे, और आपने अपने लालच के लिए उस पॉलिसी को सरेंडर नहीं होने दिया। इन्होंने तो बोला भी कि आपको नहीं मालूम है कि जिस काम के लिए आप ये इंटरव्यू कर रहे हो ये ठीक नहीं है। He told me. Then I said कि now what do you want? वो उन्होंने उनको ये भी बताया कि आपको मालूम नहीं है कि जिस बंदे के साथ आप पंगा लेने की कोशिश कर रहे हो, यू डोंट नो हिम कि वो कौन है। मैं आई एम इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर LIC के बोर्ड पे हूँ मैं, एंड ही न्यू इट आल्सो, बट प्रोबब्ली उसको ये लगा कि ये खुद बंदा अपनी पॉलिसी के लिए नहीं कह रहे हैं। दिस इज नॉट द इम्पोर्टेंट पार्ट। इम्पोर्टेंट पार्ट इज नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। मेरे को जब पंजाब सिंह ने मेरे को बोला कि उसने ये बोला है, मैंने आप छोड़ दीजिएगा, अब आप देखिए क्या होता है। आई टोल्ड हिम कि आपने ऐसा किया है। वो कहता है मैं माफी मांग रहा हूँ, मैं अपने चरणों में अपना सिर रख दूंगा, लेकिन आपसे मेरी निवेदन ये है कि मेरे ऊपर कोई एक्शन मत लीजिए। आई केम बैक टू कॉन्टेक्टेड पंजाब सिंह, तो उन्होंने कहा कि नहीं, उसने जो काम किया, लेकिन हमारे को उसको क्षमा करना चाहिए। This is what I am trying to say. This is the message. ये मैनिपुलेटिव है। His son got humiliated. His son got insulted. His son was not well. And I have made up my mind. And not only that agent, but the branch manager, probably he would have been suspended. One phone call, one message from me would have taken care of it. But I never wanted to do this because I said कि मैं उनसे पूछ लेता हूँ। जो मैं इनकी बात बता रहा हूँ कि इन्होंने सबके कहने के बाद इन्होंने कहा कि नहीं, आपको छोड़ दीजिए, आप उस पर कोई एक्शन मत लीजिए। पॉइंट इज कि जो मैंने आपको बोला कि जिस पेड़ को फल लगे होते हैं, जो फल तोड़ नहीं पाते उसको फल छीनना चाहते हैं और पत्थर मार के गिराना चाहते हैं। वो पत्थर खाने के बाद भी पेड़ जो है वो आपको फल देता है। आप फूल को मसलते हैं, फूल को पेन होती है, दर्द होती है, लेकिन आपके हाथ में तब भी खुशबू छोड़ता है। बदले की भावना से नहीं, इसको अगर लिंक करें पेशेंट सर्विस के साथ तो पेशेंट की मनोस्थिति कुछ और हो सकती है। पेशेंट आपको भला बुरा भी कह सकता है, कुछ और भी कह सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रिएक्ट नहीं करना है। उसको भी सेवा भाव से ही देखें कि वो आपके पास आया। पेशेंट को फॉलो अप करने के लिए देयर आर हॉस्पिटल्स, आई हैव सर्व्ड हॉस्पिटल्स वेयर दिस सिस्टम वाज देयर, बट कमिटमेंट चाहिए। इट इज नॉट पॉसिबल टू डू इट इन शांतिवन हॉस्पिटल। इट इज पॉसिबल, वेरी मच पॉसिबल, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम वी हैव लर्नड मोर एंड मोर। बट आर वी रेडी? अपने आप से पूछिए कि ये जो पंजाब सिंह जी ने कहा, ये एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालना है, या इसे इस पे चिंतन करना है, मनन करना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। पंजाब सिंह जी आके कहते जाएंगे, आपको हम सुनते चले जाएंगे, सब हो जाएगा, लेकिन अगर उसको हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया तो ये ग्रेटेस्ट डिसरिस्पेक्ट होगी पंजाब सिंह जी के लिए, जो जिसके लिए काम करते हैं। वो अपना समय निकाल के यहाँ पे आते हैं, उसके लिए काम करना पड़ता है, कोई पारितोषिक नहीं मिलता उनको उसके लिए। वो हमारे को ही बढ़ाने के लिए
वो कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं। I will just ask one thing from all of you who are present, including myself, कि are we willing to implement it whatever we have heard? Yes or no? Yes, sir. So if we can do this, वो इन्होंने कहा कि ये मैं परिवार का अंग हूँ, इनके परिवार के अंग को ये इनको खुशी होगी अगर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और दुख होगा जबकि मेरे कहने के बावजूद ही नहीं किया। हम इनको खुशी देना चाहते हैं, हाँ या ना? Yes, sir. So that is the answer. Let's resolve. जो पेशेंट है, पेशेंट इज द बॉस, पेशेंट इज द बॉस। पेशेंट वो किसी को भी फायर कर सकता है। यहाँ पे आपको अगर अकाउंट की जरूरत है, पेशेंट अकाउंट देता है, अकाउंटेंट है इसलिए अकाउंटेंट तो पेशेंट है। अगर पेशेंट नहीं होगा, पेशेंट ये डिसाइड करते हैं कि मैं शांति निकेतन में नहीं, साथ वाले हॉस्पिटल में जाऊंगा, तो क्या ना तो अकाउंटेंट की जरूरत है, ना सीईओ की जरूरत है, डॉक्टर की जरूरत है। सो लेट्स लर्न, मनन करें इस बात को। हम कुछ भी अनाउंस करें कि हम आईसीयू के बाद में लगाएंगे, लेकिन उसकी अपडेशन चाहिए, और अपडेशन करेक्ट चाहिए। You go to Rajiv Gandhi Cancer Institute, you just sit in the lobby and you will find every information displayed. You go to Muljan Hospital, every 15 days they ask for feedback, they ask for कि आपको उनको रिमाइंड कराते हैं कि आपको जो है आपका फॉलोअप ड्यू है। अगर आपका फॉलोअप ड्यू है, आपको डॉक्टर ने कहा था हमने रिपोर्ट चाहिए, क्या मैं टेंशन को भेज दूं आपको ब्लड सैंपल लेने के लिए? अगर किसी पेशेंट ने एम्बुलेंस दी है या टैक्सी एंगेज की है हॉस्पिटल के थ्रू, और उस पर पहुंचने के लिए 1 घंटा लगेगा, तो 1.25 घंटे के बाद फोन जाएगा उसके पास, अब तक ठीक है पहुंच गए। This is what we got us JCI and other things. And is it impossible? Is it not impossible? Is it difficult? It is not difficult even. But do we have that commitment? So एक अच्छी तरीके से थैंक्स करने का, एक अच्छे तरीके से समृद्धि चिन्ह देने का, लेट ऑल ऑफ अस शुड बी इन पोजीशन टू से कि हम ये कर रहे हैं थैंक्स टू पंजाब सिंह जी जिन्होंने हमको ये सिखाया। दैट विल द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट विच वी लेट्स डू इट। आज हम 200 बेड का अस्पताल है, अगर 450 बेड को बनाना है, अपने आप को इस तरीके से बनाइए कि जब हॉस्पिटल के बारे में बात हो रही हो और अच्छी बात हो रही हो, तो हमको ये कहें कि हाँ मैं उसी अस्पताल का हूं। और अगर ये नहीं होगा, लोग अस्पताल की बात कर रहे होंगे, बुराई हो रही होगी, तो कोई कहेगा कि ये तो सुनील संगत तो वहां शांति कुंज में काम करते हैं, सीईओ है वहां पे। मैं कहूँ मैं सीईओ तो लेकिन मेरी चलती कुछ नहीं है, तो then what I am doing? Nothing. Be proud. Be a part of the organization. Own it. अगर कर रही है तो कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। कौन कहता है कि आसमान में छेद हो नहीं सकता? एक पत्थर से मत उछालो यार। थैंक यू वेरी मच। प्लीज टेक दिस सीरियसली। कंपटीशन जो है, आप अगर हेयर एंड टॉर्टाइल की स्टोरी आपने सुनी है, इट इज नॉट दैट के टॉर्टाइल ज्यादा तेज भाग सकता था, भाग तो खरगोश ही सकता था, लेकिन जीता फिर भी टॉर्टाइल तो वो चलता रहा। जो राह चुनी तुमने उस राह पे राह चलते जाना है। अगर संकल्प लिया है तो समर्पण की भावना रखो, कोई हरा नहीं सकेगा। बाकी भी से कि कोई नहीं, जिस दिन मैं सोचूंगा कि मेरा नंबर 2 कोई काम कर रहा है, तो नंबर 2 का नंबर 2 होगा, उस नंबर 2 का फिर नंबर 2 होगा। तो व्हाई नॉट टू स्टार्ट डूइंग इट? आपसे सबसे निवेदन है कि काइंडली अंडरस्टैंड द नीड। अपने आप को अगर कुछ भी नहीं तो जिस काम को आपने चुना है, लुक एट द फौजी जो बॉर्डर पे जाता है और अपने आप से कंपेयर करें। मुश्किल काम हो तो हम कहते हैं कि चलो ये मेघना कर लेगी, ये तेजिंदर कर लेगा, ये कर लेगा, या खतरा हो तो हाँ मेरे को बचा के रखे क्योंकि तो अपनी फैमिली पे आ रही है।
लेकिन वो फौजी जो कहता है दूसरे फौजी के पीछे कहता है नहीं, मैं जाऊंगा सामने, मैं ग्रेनेड फेंकूंगा, मैं दुश्मन की गोली अपने छाती पे लूंगा। क्या वो भावना है हमारे अंदर? क्या वो भावना ला सकते हैं हम अपने अंदर? अगर जिस दिन ये भावना हमारे अंदर आ जाएगी, दिल्ली का नहीं हिंदुस्तान का बेस्ट हॉस्पिटल होगा। आपने देखा 2 मई को जब डबल हेलिकल अवार्ड दिया गया, हम हिंदुस्तान के मैप पे नहीं हैं, लेकिन आप लोगों ने जो कोविड में किया उसके लिए हमारे को नेशनल लेवल पे पर 2nd नंबर पर हॉस्पिटल दिया गया, 2nd नंबर, अफोर्डेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी। और एक बात आपको मालूम ही होगी सबको, फिर भी मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि वहाँ PIDC से, PIDC चैम्बर ऑफ कॉमर्स से उनके प्रेसिडेंट वहाँ आए हुए थे। वो इतना मूड हुए वहाँ पे इस बात को सुन के कि जो हमने काम किया, 40 लाख रुपए से ज्यादा का ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट उन्होंने डोनेट किया, 2 मई को सैंक्शन किया और 10 मई को एग्रीमेंट साइन कर दिया। वो आप लोगों के सिर्फ कोविड में ही काम करना है ऐसा जरूरी नहीं है, तो हमें क्या काम किया जा सकता? उस भावना को बना के रखिए कि और जो मरीज आया है वो आबादा मरीज सामने आया आपके पास में, आप हेल्प सीख करके लिए आया। आप खुद सोचें, रेलवे ट्रैक के ऊपर आप खड़े होते हैं और आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, तो जो जिसको आप जानते भी नहीं उसको हाथ खड़ा कर बढ़ा के उसे प्लेटफॉर्म पे ले आते हैं। वो इसकी परवाह नहीं किए बिना कि वो थैंक्स भी करेगा कि नहीं करेगा। तो व्हाई कांट वी डू दिस? जहां तो पेशेंट के लिए सर्विस करने के लिए वी आर पेड फॉर। हम अपने पेपर को लेके, गॉस पीस को लेके, कॉटन को लेके काउंटर साफ कर देते हैं। डू वी कम केयर कि ये वेस्टेज है, इसको अवॉइड करना चाहिए। सिर्फ भावना जताने की बात है, मन में विचार आने की बात है। आप जैसा कोई नहीं है, जो लोग जीतते हैं वो आपसे अलग नहीं होते। आप जैसे किसी एक बंदे को जिसको आप जानते हो कि उसने विन किया है। जब रतन टाटा ने मेरे को फोन करके ये कहा कि सुनील, उसके सेक्रेटरी ने कहा कि साहब बात करेंगे, रतन टाटा बात करेंगे, और टाटा ने ये कहा कि जो आप शांतिमगंज ने किया है, दिस इज एक वर्ड इधर सच है कि जो आपने किया कि अपने स्टाफ से, लो स्टाफ से आपने नए हॉस्पिटल की आधारशिला रखवा दिया आपने। वो बात मैं भी नहीं कर सका क्योंकि आई एम सपोज्ड टू बी द बेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ नॉट ओनली इंडिया बट वर्ल्ड वाइड। आप कर सकते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मन में ये बात विचार नहीं आया। आज का जो टॉक थी पंजाब सिंह जी की, उन्होंने कुछ ऐसी बात, जो बात उन्होंने कही है, कोई ऐसा बताया कि जिसको हमको ये बात पता नहीं है, पता थी लेकिन करते नहीं थे। करिए, करने में खुशी मिलेगी। जो खुशी दूसरे को मिलेगी आपको देने के बाद, उससे ज्यादा खुशी आपको मिलेगी। नॉट डिफिकल्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, बट देन आई विल अप्रिशिएट इफ वी ऑल टेक ए रिजॉल्व, give a commitment that will follow it. Thank you very much. Thank you, sir. बहुत धन्यवाद। अभी मैं सबको एक निवेदन करूंगी, बाहर हम सबके लिए लंच है, हर जना लंच करके जाएंगे।